ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀਵਾਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਰੰਗ ਆਲੋਚਨਾ ਤੇ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਰੰਗ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਉੱਘੇ ਔਰ ਸਿਰਮੌਰ ਰੰਗਕਰਮੀ ਵੀ ਔਰ ਨਾਟਕ ਆਲੋਚਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਮ ਪਾਂਡੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਨਾਟਕ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਔਰ ਸਮੀਖਿਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ ਉਮਾ ਝੁੰਝੁਨਵਾਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ ਰੰਗਮੰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਉੱਘਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ ਸਤੀਸ਼ ਆਨੰਦ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਨਾਟਕ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਹੇ। ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਹਿਗਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਬਾਅਦ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਕਿ ਰੰਗ ਸਮੀਖਿਆ ਰੰਗ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। रंग समीक्षा एक डिफरेंट चीज है, रंग आलोचना एक डिफरेंट चीज है। रंग आलोचना रंगमंच या रंग कर्म का ऐसा एक अंग है जिसनों ਆਪਾਂ अलग नहीं कर सकते, ਵੱਖ नहीं कर सकते। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਜੇ ਐਕਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਰੰਗ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਤੰਭ ਹੈ ਸਾਡੇ ਰੰਗ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਤਿੰਦਰ ਤਨੇਜਾ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਹੁਤ ਕੱਢੀਆਂ, ਨਿਮਿਜਨ ਜੈਨ ਦੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਰੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਜੈਦੇਵ ਤਨੇਜਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਉਸ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਪੁਰਾਣਾ ਐਸਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਨਾਟਕ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਨਾਟਕ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਨਾਟਕ ਦੇ ਸ਼ੈਲੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਰਹੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਡਰਨ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰੰਗਮੰਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕੇ, ਇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲ। ਲੇਕਿਨ ਰੰਗ ਮੰਚ ਰੰਗ ਆਲੋਚਨਾ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੇਖਿਆ। ਜੈਦੇਵ ਤਨੇਜਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੰਗ ਸ਼ੀਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੰਗ ਕਰਨ ਤੇ, ਹਿੰਦੀ ਰੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਤਿੰਦਰ ਤਨੇਜਾ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਸਾਰਥਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜੇ ਹਰ ਦਰਸ਼ਕ, ਹਰ ਪਾਠਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਕ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਦਰਸ਼ਕ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਪਾਠਕ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਆਲੋਚਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਨੇ ਆ ਨਾਟਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਕਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਲਾਈਟਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਸਟਿਊਮ ਬਾਰੇ, ਮੇਕਅਪ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਲੋਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕੰਪੈਕਟ ਆਲੋਚਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਰੰਗ ਆਲੋਚਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਰੰਗ ਆਲੋਚਕ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਸਿਧਾਂਤਿਕ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਵਿਵਹਾਰਿਕ। ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਆਲੋਚਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਟੀਚਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਟਕ ਉਤੇ, ਕਥਾ ਉਤੇ, ਕਹਾਣੀ ਉਤੇ ਜਾਂ ਨਾਟਕਾਰ ਉਤੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਿਕ ਆਲੋਚਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਮਫਿਲ PhD ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਆਲੋਚਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਆਪਾਂ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਰੰਗ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਰੰਗ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆਲੋਚਕ, ਜੋ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਰੰਗ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਨਿਮਿਜਨ ਜੈਨ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਈ ਰੰਗ ਆਲੋਚਕ ਰਹੇ ਹੈ। ਮਹੇਸ਼ ਆਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, TR ਅੰਕੁਰ ਜੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਵਸਥੀ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਵਸਥੀ ਜੀ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਹਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜੈਦੇਵ ਤਨੇਜਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਤਿੰਦਰ ਤਨੇਜਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੁਝ ਨਾਮ ਨੇ, TR ਅੰਕੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਕੁਝ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਆਲੋਚਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਨਾਮ ਨੇ ਜੋ ਰੰਗ ਆਲੋਚਕ ਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੰਗ ਕਰਮ ਨੂੰ, ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਨਾਟਕਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਂਜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੰਗ ਆਲੋਚਕ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਰੰਗ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਸਿਧਾਂਤ, ਕਿਸ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਾਠਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਕ ਹੁੰਦਾ।
लेकिन ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਔਰ ਆਲੋਚਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਫਰਕ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਲੋਚਕ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਕੀ ਆयाम ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਰੰਗ ਵਾਰਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਈ ਰੰਗ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਕਈ ਰੰਗ ਧਰਮ ਦੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਟਿੰਗ, ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ, ਲਾਈਟ, ਕਾਸਟਿਊਮ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਰੇ ਡਰਾਮਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਪੜਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਰੰਗ ਆਲੋਚਨਾ, ਕੌਣ ਰੰਗ ਆਲੋਚਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਨਾਟਕ ਵੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੰਗਮ ਬਾਣੇ ਜੀ ਨਾਲ ਅੱਜ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਨਾਟਕ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਾਟਕ ਵੇਖਣ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਏ। ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਭੇਜੂੰਗਾ, ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੱਸਾਂ ਬਾਰੇ। ਨਾਟਕ ਵੇਖਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕਲਾ ਹੈ। ਨਾਟਕ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਨਾਟਕ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨੂੰ, ਔਰ ਆਲੋਚਕ ਕਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਰੰਗਕਰਮੀ ਕਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਮੀਖਿਆ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਮੀਖਿਆ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲੋਚਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਬੜੀ ਰੰਗ ਸਮੀਖਕ ਦੀ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੰਗ ਆਲੋਚਨਾ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਔਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਆਲੋਚਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨਾਟਕ ਜਾਂ ਰੰਗਕਰਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਸਹੀ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਨਾਟਕ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਨਾਟਕ ਦੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, 35 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਇਆ, ਕਈ ਵਾਰ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਟਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਦਾ ਆਲੋਚਕ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਛੱਡ ਵੀ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਲੋਚਕ ਇੰਨੀ ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਆ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤਿਕ, ਵਿਚਾਰਿਕ, 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੰਗ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਲੋਚਕ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਰੰਗਕਰਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰੰਗਕਰਮ ਦੀ। ਕਿਆ ਰੰਗ ਆਲੋਚਨਾ, ਰੰਗਕਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ व व्यवहारिक जानकारी क्या किसी आलोचक ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਟਕ ਔਰ ਰੰਗਕਰਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੰਗ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਰੰਗ ਧਾਰਾ ਬਾਰੇ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪ੍ਰਿਸ਼ਠਭੂਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਹਿਨ ਅਧਿਐਨ ਉਹਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਆ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਔਰ ਖੁੱਲਾਪਨ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਇਸ ਲਾਇਕ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਹੈ ਸਾਹਿਤ, ਸਕ੍ਰਿਪਟ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾ ਆਲੋਚਕ, ਅੱਛਾ ਆਲੋਚਕ ਔਰ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਪੇਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਟਕ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਈ ਆयाम ਖੋਲਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੰਗ ਆਲੋਚਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾਟਕਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਰੰਗ ਸਮੀਖਕ ਦਾ, ਰੰਗ ਆਲੋਚਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੰਗ ਸਮੀਖਕ, ਰੰਗ ਆਲੋਚਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੰਗ ਚਿੰਤਕ, ਇਹ 3 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੰਗ ਆਲੋਚਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਆ ਹੈ, ਰੰਗ ਚਿੰਤਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਆ ਹੈ, ਰੰਗ ਆਲੋਚਨਾ ਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਕਰ ਸੇ ਡਾਕਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਵਰਮਾ, ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਸਮੀਖਿਆ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੰਗ ਆਲੋਚਨਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਲੋਚਨਾ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ, ਰੰਗਕਰਮੀ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, कीनोट एड्रेस देंगे, पूरे कंडक्ट करेंगे प्रोग्राम ਨੂੰ ਔਰ ਅਜ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਦਾਵਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤ੍ਰਿਜਾ ਸਾਹਿਬ। ਡਾਕਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਜੀ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਜੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ।
ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਵ। ਕਾਲਜੀਏਟ ਡਰਾਮਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਟਕ ਤੇ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਤਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸੰਵਾਦ ਇੱਥੇ ਰਚਾਇਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਰੰਗਮੰਚ ਤੇ ਰੰਗ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਪਾਰਟ 2 ਜਿਸ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਓਪਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਟਕ ਗੁਰੂ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ, ਨਾਟ ਸਮੀਖਕ ਨੇ, ਨਾਟਕ ਖੋਜੀ ਨੇ, ਨਾਟ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ, ਨਾਟਕ ਦਾ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਟ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ। ਇਹ ਨਾਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਮੰਚਵਟੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਭਿਨੇਤਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਰੰਗ ਆਲੋਚਕ ਨੇ, ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਨੇ, ਯੁਵਕ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਾਠਕ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਸਨੇ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਵਕਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵੀ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਰੰਗਕਰਮੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਕਾਰ ਮੰਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਸਿਰਜੀਆਂ, ਬੜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ। ਉਹ ਬੜੇ ਆਲਾ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਨੇ, ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਭਿਨੈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਰੰਗ ਆਲੋਚਕ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਨਾਟਕ ਦੇ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਕਾਲਮ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਰਾਸ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਉਸ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ, 10 ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲਗਭਗ 15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨਾਟਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪ ਲੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਨੇਜਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰੰਗ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ, ਰੰਗ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ, ਰੰਗ ਚਿੰਤਕ ਦੀ। ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਜੀ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਝੁਕਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ, ਬੜੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਅੱਜ ਪੁੱਜਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਪਰਿਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿਆ? ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੰਗ ਆਲੋਚਨਾ ਸਾਡੀ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਣ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ। जी शुक्रिया दविंदर, बहुत प्यारे रवि जी, साहब सिंह जी। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੜੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਕਲਕੱਤਾ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਬਲਪੁਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਥੋੜਾ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਉਰਦੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਸਵਿਚ ਕਰਾਣਾ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਾਪੀ ਪੈਨਸਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਬਾਲੋ आज के, हाँ बालो प्लीज। चलो मेरे प्रिय मित्र रवि तनेजा जी, डॉक्टर साहब सिंह जी, मेरे अजीज डॉक्टर देवेंद्र जी, और एक मेरी स्क्रीन पे गगन जोशी को आ रहे हैं। पहले एक नेहा आ रही थी बच्ची। सो जो मुझे नजर आ रहे हैं, आप सबको मेरा सलाम। सबसे पहली तो ये खुशी की बात है कि मेरे 2 रंगकर्मी दोस्त विद्वान बन गए, एक रवि तनेजा जी और डॉक्टर साहब सिंह। अरे भाई, हमारे पेट पे क्यों लात मारते हो? हम 2 प्रोफेसर हैं, आपने दोनों ने यही काम शुरू कर दिया। रवि जी, जितना आपने विस्तार से बात की, मेरा ख्याल है कि भूमिका बंध गई, पर उसको मैं थोड़ा सा आगे लेकर जाऊंगा। जो देवेंद्र जी आपने कहा कि पंजाबी रंगमंच आलोचना, पंजाबी रंगमंच कहाँ पे खड़ा है इस समय, वो हम आहिस्ता आहिस्ता वहां पे आएंगे। मैं शुरू करता हूं यहाँ से। सबसे पहले तो 1-2 सिद्धांतक पहलू हैं जिनके बारे में बात करनी जरूरी है। अभी रवि जी कह रहे थे कि रंग समीक्षा और रंग आलोचना और रंग सिद्धांत, ये 3 चीजें हैं। सो लेट मी क्लियर
कि रंग समीक्षा और रंग आलोचना एक ही चीज है। आलोचना, समीक्षा, क्रिटिसिज्म, उर्दू में तनकीद, इट्स ओनली सिनोनिमस टू ईच अदर। हाँ, जब आप रंग चिंतन की बात करते हैं तो रवि जी ने एक सवाल उठाया था कि जो रंगमंच के बारे में सिद्धांतक आलोचना है और एक प्रस्तुतियों के बारे में आलोचना, उनमें क्या फर्क है। तो सबसे पहली बात यह है कि रंग चिंतन जो हम संकल्प पे कॉन्सेप्ट लेते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि थ्योरीज अबाउट थिएटर, रिविजिटिंग थिएटर, रीथिंकिंग थिएटर। और अगर मैं उदाहरण दूं तो ब्रॉकेट के थिएटर द एसेंशियल थिएटर से लेकर नेमी चंद्र जैन जी की रंग दर्शन तक, ये एक परंपरा है कि हम रंगमंच के बारे में चिंतन कैसे करेंगे। उसके लिए हमें इतिहास में क्या क्या मिलेगा। पश्चिम की तरफ जाएंगे तो पोइटिक्स मिलेगा अरस्तु का, और इस तरफ आएंगे तो भरत मुनि जी का नाट्यशास्त्र मिलेगा, उसके बाद दश रूपक मिलेगा। सो बहुत सा रंग चिंतन हुआ है हमारे पास, लेकिन रंग समीक्षा का अभाव है। रंग समीक्षा उतनी नहीं हुई, मेरी भाषा में तो बहुत ही कम हुई, लेकिन जितना मैं जानता हूं दूसरी भाषाओं में भी कम है। अब उसका कारण क्या है, मैं इस कारण पे आता हूं। मेरी बात को नेगेटिव ना लिया जाए कि एक अखबार में कोई साहेब कॉलम लिखते हैं, थिएटर पे तनकीद करते हैं, बहुत बड़ी बात है, लेकिन उनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिल जाता है, जबकि वो नाट्य पत्रिकारिता, रंग पत्रिकारिता के साथ जुड़े हुए हैं। कि आपने नाटक देखा, एक आम पाठक के लिए आपने अखबार में समीक्षा की, वो भी समीक्षा है, लेकिन वो समीक्षा से ज्यादा रिपोर्टिंग है, और वो एक दर्शक को बताने के लिए है कि नाटक ये हुआ, ऐसे हुआ। लेकिन जो एकेडमिक लेवल पे रंग समीक्षा है, वो एक अलग परिप्रेक्ष्य है। मैं अभी क्लियर कर देता हूं। नंबर 1, एक समस्या हमारे यहाँ हुई जो बाकी भाषाओं में भी रही होगी, कि हमने नाट्य पाठ और नाट्य प्रस्तुति, इन दोनों की अलग अलग आइडेंटिटी को समझा नहीं या स्वीकारा नहीं। जब नाटक का अध्यापन होता है, अध्ययन होता है, तो हम इसको एक उपन्यास की तरह या एक कहानी की तरह पढ़ाते रहे हैं। मेरी भाषा में तो ऐसा ही हुआ कि गल्प, जिसको हम बोलते हैं फिक्शन, नॉवल या कहानी, उसमें भी एक कथानक होता है, एक पात्र होते हैं, भाषा होती है, थोड़े बहुत संवाद भी होते हैं, एक शैली होती है। तो ऐसे ही हम नाटक को पढ़ाते रहे कि नाटक में एक कथानक होता है, प्लॉट होता है, नाटक में पात्र होते हैं, नाटक में भाषा होती है, संवाद होता है। दूसरी तरफ जो रंग प्रस्तुतियां थी, उनकी समीक्षा होती रही रिपोर्टिंग के लेवल पे। हमारे जो पहले रंग समीक्षक का मैं नाम लूं, कपूर सिंह घुमन, हमारे नाटककार, जिन्होंने रंगमंच की डायरी लिखी, वो नाटककार थे, थिएटर करते थे, लेकिन वो नाटक देखने जाते थे, उस नाटक के बारे में अपनी राय देते थे, और राय अखबारों, मैगजीनों में अलग अलग कॉलमों में छपती थी। एक तो उन्होंने 2 बार तो छंदम नाम से भी समीक्षा की, एक कपूर का उल्टाकर उन्होंने रूपक हरि किया, इसी तरह एक और नाम उन्होंने अपने में लिए बाद में इस्तेमाल किया, रंगाचार्य। अब समस्या क्या हुई है, जहां से मुझे अपनी बात को का धागा पकड़ना चाहिए, कि जब साहित्य के विभागों में, लिटरेचर डिपार्टमेंट्स में नाटक पढ़ाया जाता है, तो वहां रंगमंच शून्य हो जाता है। और जब हम रंगमंच देखते हैं, प्रस्तुति देखते हैं, तो उसमें एकेडमिक शून्य हो जाती है। वो भी अधूरी समीक्षा, ये भी अधूरी समीक्षा। अब मैं क्योंकि 35-40 साल से इस विषय में काम कर रहा हूं, तो मैं इस 2 की बजाय 3 आपको स्तर बताऊंगा। एक स्तर है जब मैं अध्यापन करता हूं, साहित्य पढ़ाता हूं, साहित्य में नाटक पढ़ाता हूं, तो मैं नाटक को रंगमंचीय दृष्टि से पढ़ाता हूं। जो मेरे दोस्त पंजाबी के अलावा दूसरी भाषाओं के सुन रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि मैंने एक समीक्षा में नई विधा को डेवलप किया है, जिसका नाम है नाटक का रंगमंचीय अध्ययन। अब देखने से लगता है कि नाटक का रंगमंच यानी कि नाटक के रंगमंच का अध्ययन। साहब सिंह ने नाटक लिखा पूरो और उसको खेला, जो खेला गया उसका अध्ययन मैं करूंगा, वो रंगमंच हो गया, लेकिन जब मैं पढ़ूंगा तो नाटक हो गया। लेकिन नहीं, नाटक का रंगमंच अध्ययन, मेरी समीक्षा विधि ये है कि जब कोई नाटककार नाटक लिखता है, तो उस नाट्य पाठ में एक रंगमंच छुपा होता है। एक होती है वर्बल लैंग्वेज, एक होती है नॉन वर्बल लैंग्वेज। अब फिक्शन में वर्बल लैंग्वेज होगी,
और जब वर्बल लैंग्वेज नहीं होगी तो प्रकृति चित्रण होगा। जैसे हम बचपन में जासूसी उपन्यास पढ़ते थे तो लगातार कहानी की तरफ ध्यान होता था, और जब नया चैप्टर शुरू होता तो फिर उपन्यासकार शुरू कर देता कि अंधेरा घना था, आसमान में बिजली चमक रही थी, तो हम वो पोर्शन छोड़कर प्रकृति चित्रण का उसके बाद कहानी में चले जाते। तो उपन्यास में या कहानी में वो रंगमंचता नहीं होगी जो नाट्य पाठ में हो। मैं इसको ऐसे कहूंगा कि एक होगा उसका नाट्य पाठ, लिखित पाठ, और एक उसका खेल पाठ, खेलने वाला पाठ, नॉट प्रोडक्शन बट के जो टू बी प्रोड्यूस्ड टेक्स्ट है वो उस नाटक की पाठ में समाहित हो, नॉन वर्बल लैंग्वेज की वजह से। अगर आप कोई भी नाटक पढ़ें, देवेंद्र कुमार जी नाटककार बैठे हैं, साहब सिंह बैठे हैं, और रवि जी ने सारा सिद्धू सा पढ़ा हुआ है, कि जब आप नाटक पढ़ेंगे तो वहां शाब्दिक संचार के साथ साथ अशाब्दिक संचार भी होगा। इसकी खूबसूरत उदाहरण बलवंत गार्गी का नाटक लोहा कुठ है, उसका मैंने अध्ययन किया। तो जितना उसका वर्बल टेक्स्ट है उतना ही नॉन वर्बल टेक्स्ट है। तो जब तो आप साहित्य में पढ़ाएंगे तो आप नाटक के अंदर छुपे हुए उस प्रोडक्शन टेक्स्ट को ढूंढेंगे जो वहां पे लुप्त है, अंडर लेयर पे चल रही है। इसका मतलब कि नाटक का विद्यार्थी उसकी रंगमंचता को समझ ले। लेकिन जब नाटक रंगमंच पे खेला जाएगा वो मंचित पाठ हो जाएगा, उसका और नाट्य पाठ का अलग अलग अस्तित्व है। नाट्य पाठ जिसमें टू बी प्रोड्यूस्ड टेक्स्ट समाहित है, और एक दूसरी जो मंचित पाठ है विच इज प्रोड्यूस्ड टेक्स्ट। अब यहां मुगालता ये लग जाता है कि डायरेक्टर को लगता है कि भाई ये मेरी प्रोडक्शन है, और जब नाटककार लिखते हैं, जैसे हमारे पुराने नाटककार कपूर सिंह घुमन लिखते थे कि मेरा नाटक फलाने खेला और उसको मार दिया, खत्म कर दिया, ऐसे लगा जैसे बच्चा जन्म से पहले मर गया हो। अब नाटककार ये समझता है कि मेरे नाटक को खेले जैसे मैंने लिखा। लेकिन याद रखिए कि डायरेक्टर की वैसी ही एक आइडेंटिटी है जैसी एक नाटककार की आइडेंटिटी। जो नाटककार ने नाटक लिखा वो नाटककार की रचना है, लेकिन जो खेला गया, जो प्रोडक्शन है, जो मंचित पाठ है, वो निर्देशक की रचना है। अब इसमें एक और बहुत बारीक समझने वाली बात है। जब मैं किसी स्टूडेंट को पीएचडी का टॉपिक देता हूं, ये पहले रंगमंचेधन वाली विधि से पीएचडी करने वाले देवेंद्र कुमार हमारे पास ही बैठे हैं। इन्होंने गुरदयाल सिंह फुल के नाटकों का रंगमंची अध्ययन मेरी विधि से पहली पीएचडी की थी। उससे पहले 2 एमफिल हो चुके थे, एक परमजीत पेदी आत्मजीत के नाटक का रंगमंच अध्ययन, एक रेणु थापर अजमेर सिंह औलख के नाटक का रंगमंच अध्ययन। खैर, नॉट गोइंग टू द हिस्ट्री। अब जब मैं टॉपिक देता हूँ स्टूडेंट को, तो मेरे जो अध्यापक साथी हैं साहित्य के, वो स्टूडेंट से एक सवाल पूछते हैं, तुम इसकी पेशकारियां देखोगे, इसकी प्रस्तुति देखोगे? मैं कहा नहीं देखेगा, ना इसको देखने की जरूरत है, क्योंकि इसने नाट्य पाठ में लुप्त रंगमंचीय पाठ की स्टडी करी। नाटक नाटककार का माध्यम है, थिएटर निर्देशक का माध्यम है। 2 अलग अलग आइडेंटिटीज हैं, दोनों का एक अपना स्टेटस है, अपना वैल्यू है, इनको मिक्स करके नहीं देखना चाहिए। बेसिकली नाटक, नाट्य पाठ नाटककार का माध्यम है। दुनिया का जितना भी नाटक है, वो बेशक एस्काइलस, यूरिपिडीज हो, सोफोक्लीज हो, या कालिदास भास शूद्रक से लेकर साहब सिंह देवेंद्र कुमार तक हो, तो हमें नाट्य पाठ ही नाटक मिलेगा। इसलिए नाटककार का माध्यम है नाटक, लेकिन उस नाटक की एक एक्सटेंशन है, उसका एक पालक है, उसकी पालने वाली माँ है, वो है रंगमंच। अब समस्या कहां पे खड़ी होती है कि जब आप निर्देशक के तौर पे नाटक को खेलते हो, तो उस नाट्य पाठ से मंचित पाठ निकालने के लिए बहुत सी तब्दीलियां हो जाती हैं, जिससे नाटक का डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन उनको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। वो कारण ये है कि नाटक एक है, नाटककार एक है, लेकिन निर्देशक उसके दर्जनों, सैकड़ों, हजारों हो सकते हैं। शेक्सपियर पिछले 500 सालों में 50,000 निर्देशकों ने खेला होगा, लेकिन सबकी प्रोडक्शन टेक्स्ट अलग अलग होगी। तो उन प्रोडक्शन टेक्स्ट की स्टडी ही रंग समीक्षा है। अब क्योंकि परंपरा रही नहीं, उसका कारण क्या है कि पहले साधन नहीं थे। आपने नाटक खेला 1.5-2 घंटे में, तो बेशक दर्शक हो, बेशक समीक्षक हो, उसकी यादाश्त के बेस पे उसकी समीक्षा हो, जितना उसे याद रह गया। उसके पास डॉक्यूमेंट कोई नहीं है। नाटक डॉक्यूमेंट है, लेकिन प्रोडक्शन का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। और इसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि जब नाटक देखकर आप बाहर निकलते हैं, तो समीक्षक भी भाई एक दर्शक है। वो दर्शक की तरह ताली बजाता है, दर्शक की तरह रिस्पॉन्ड करता है,
लेकिन साथ में उसका एक समीक्षक वाला दिमाग भी चलता है। वो घर जाकर जब पेन उठाता है तो उसने जो देखा उसको अपनी याददाश्त में बसाया, सेट कैसा था, मेकअप कैसा था, कॉस्ट्यूम कैसे थे, एक्टिंग कैसी थी, तो वो देखता था। और इसलिए जब भी कोई निर्देशक, ये साहब सिंह और देवेंद्र कुमार मेरी बात की तायद करेंगे, दोनों नाटककार हैं, कि जब कोई नाटककार खुद निर्देशक होता है और वो दूसरों का लिखा नाटक खेलता है तो उसमें काट छांट करनी पड़ती है, लेकिन जब वो अपना लिखा नाटक खेलता है उसको भी काट छांट करनी पड़ती है। मेरे साथ ये तजर्बे हुए हैं। मेरा नाटक दायरे रघुवीर कौर ने खेला, केवल धालीवाल ने खेला, प्राण सब्रवाल ने खेला। उन्होंने बहुत सी तब्दीलियां की, उनको हक है करने का, बिकॉज दैट इज गोइंग टू द डायरेक्टर टेक्स्ट, नॉट द प्ले राइट टेक्स्ट। और जब मैंने पंजाबी अकादमी दिल्ली में खेला तो मुझे भी बतौर निर्देशक अपने ही नाटक में तब्दीलियां करनी पड़ी। जैसे आप क्लास के टीचर हो, बाकी स्टूडेंट्स के साथ आपका बच्चा पढ़ता हो, उसको भी आपको वैसी फैंटी चढ़ानी पड़ेगी जैसी दूसरों को चढ़ाते। तो मैंने अपने नाटक दायरे में 2 नए सीन लिखे, उसमें गीत डाले। तो निर्देशक सतीश कुमार वर्मा की भूख नाटक का सतीश कुमार वर्मा भी पूरी नहीं कर सकता। यही जब मैंने कनाडा में 80 सारे भगत सिंह नाटक खेला पियरसन थिएटर में 2014 में 21 जून को, तो वहां पे मेरी स्क्रिप्ट इतनी चेंज हुई कि अब मैं अपनी नाटककार वाली स्क्रिप्ट और निर्देशक वाली स्क्रिप्ट दोनों को एक जिल्द में प्रकाशित कर रहा हूं। सो ये बात समझकर चलिए कि रंगमंच एक अलग अनुशासन है जिसका बेस नाटक है। एक ही प्लॉट पे घर बनता है, एक ही प्लॉट पे मॉल बनता है। तो इसलिए रंग समीक्षक वो होगा जो नाटक की प्रस्तुति की समीक्षा करेगा। अब हमारे पास 2 साधन हो गए। नंबर 1 ये कि हमारे पास डायरेक्टर के साथ एक दूसरा और इंपॉर्टेंट शख्स आ गया जिसे हम डिजाइनर कहते हैं, डायरेक्टर एंड डिजाइनर। कई बार प्ले राइट खुद डायरेक्टर होता है, डिजाइनर भी होता है, लेकिन अब हमारा रंगमंच, पंजाबी रंगमंच भी वो एमेच्योर से शुरू होकर प्रोफेशनल थिएटर बन चुका है, कमर्शियल थिएटर की तरफ जा रहा है। अब हमारे पास कुछ नाटककार हैं जैसे केवल धालीवाल हैं, साहब सिंह हैं, आत्मजीत हैं, हम दोनों भी हैं, सोमपाल हीरा है, कुलदीप सिंह दीप है, जो नाटककार भी हैं, निर्देशक भी हैं। पर दूसरी तरफ ऐसे निर्देशक पैदा हो गए जो सिर्फ निर्देशक हैं, जैसे नयो में कीर्ति कृपाल है, संगीता गुप्ता है, अनीता सबदीश है, जो कि निरोल निर्देशक हैं। तो वो निर्देशक जब डायरेक्ट करेंगे और नाटककार जब अपना ही नाटक डायरेक्ट करेगा तो वो अलग अलग निर्देशक हो जाए। अब कमी कहाँ रही, जो बात देवेंद्र जी आपने कही थी कि हमारे पास रंग समीक्षक नहीं थे, रिपोर्टर थे, वो रिपोर्टिंग करते थे। नाटक को आलोचक नहीं मिले क्योंकि वो नाटक को एक फिक्शन की टेक्स्ट के तौर पर स्टडी करते थे। तो नाट्य समीक्षा भी अधूरी और रंगमंचीय समीक्षा भी अधूरी। लेकिन अब दोनों तरफ बदलाव आ गया। जैसे मैंने नाट्य समीक्षा में नाटक का रंगमंचीय अध्ययन का मॉडल बनाया, उसी तरह रंगमंच के भी समीक्षक हो गए। उसके लिए 2 साधन हो गए। नंबर 1 साधन ये कि अब हम एज इट इज प्रोडक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं। पहले तो कैमरे की जरूरत होती थी, अब तो मोबाइल भी है। जब आप किसी प्रोडक्शन को बिना डिस्टर्ब किए आराम से रिकॉर्ड कर लेते हो, तो जब आप समीक्षा करते हो, जैसे पुस्तक के पन्ने हम उलटते हैं देखने के लिए, यहाँ क्या लिखा, यहाँ क्या लिखा, तो हम उसको रिकॉर्ड को देखकर हमें पता चल सकता है। और ये तजर्बा पहली बार साधु और सुखवंत हुंदल, 2 हमारे नाटककार रंगकर्मी है कनाडा में, उन्होंने मिलकर नाटक लिखे। उसका नाम था पिकट लाइन और अन्य नाटक, बाद में लत्ता दे पूते होर नाटक। तो वो आज से 25 साल पहले साहिब वहां से वीडियो रिकॉर्डिंग लेकर आए गुरु नानक यूनिवर्सिटी में और मुझे बुलाया गया उस पर समीक्षा करने के लिए। तो हमने वीडियो देखकर उसके बारे में बात की। उस दिन मुझे लगा कि अब रंग समीक्षा इसलिए हो जाएगी कि हमारे पास प्रोडक्शन का भी रिकॉर्ड है। जैसे किताब है नाटक और आपके पास वीडियो कैसेट, अब वो पेन ड्राइव हो गया, कहीं भी हो। तो अब रंग समीक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा ये होगा, नंबर 1, अब हमारे पास डायरेक्टर है और साथ डिजाइनर है। There is one man to design the production and there is one man to direct the production. They may be one only, they may be two only. तो जब एक डिजाइनर डिजाइन करेगा तो उसका मेकअप, उसका कॉस्ट्यूम, उसका सेट, उसका म्यूजिक, उसका साउंड सिस्टम, वो उसकी ब्लॉकिंग, वो सभी एक सिस्टम में होगी। इसलिए हमारे पास समीक्षा के लिए वैसे ही वो टेक्स्ट होगी जो एक डायरेक्टेड एंड डिजाइन्ड बाय समवन है। दूसरा, हमारे पास याददाश्त तो है ही है, लेकिन उसके साथ रिकॉर्ड भी है। अब रवि तनेजा जी कह रहे थे कि एक दर्शक होता है, एक समीक्षक होता है। मैं रवि जी इसमें भी इजाफा कर दूं कि दर्शक सबसे बड़ा समीक्षक होता है। पहले शो में 500 लोग आए,
दूसरे में 200 आए, तीसरे में 100 आए, चौथे में 50 आए। अब ये किस लिए आए? क्योंकि जो दर्शक गया, उस दर्शक की समीक्षा ने दूसरों को प्रभावित किया। दर्शक कितना सचेत हो सकता है, कुछ छोटी सी उदाहरण दूंगा। मैंने अपना नाटक मसला पंजाब दा रामपुर गांव में खेला आज से कोई 30 साल पहले। वो नाटक मेरे दोस्तों ने पढ़ा, देवेंद्र जी, रवि जी, साहब जी। तो उसमें पंजाब प्रॉब्लम के बारे में नाटक है। तो एक डायरेक्टर और कुछ एक्टर्स आते हैं, कहते हैं यार पंजाब प्रॉब्लम बहुत बुरी तरह घिर गए, हम इसके बारे में नाटक खेलें। वो पहले कहते चलो ऐसा ऐसा नाटक खेलते हैं, तो मंच पे इम्प्रोवाइज करते हैं। जब वो नाटक निकलता है तो कहते हैं यार छोड़ो, ये तो सरकारी नाटक हो गया, चलो कुछ और लेते हैं। तो एक नाटक में 2-3 नाटक, यानी कि प्ले विद इन प्ले। अब ये कॉन्सेप्ट प्ले विद इन प्ले उस समय नहीं था। उसके बाद उपन्यास टीवी सीरियल आया, तब लोगों को पता चला। अब तो एक्टर भी बदल जाते हैं। तो जब नाटक खत्म हुआ है कि बुजुर्ग आया मेरे पास, कहता प्रोफेसर साहब आप इतने समझदार हो, आप रिहर्सल घर पे कर आते, तो आप तो स्टेज पे रिहर्सल कर ही गए। अब वो दर्शक को लगा कि यार ये नाटक नहीं हो रहा, ये नाटक की रिहर्सल हो रही है, ये यहाँ पे नाटक तैयार कर रहे हैं। लेकिन आज 30 साल बाद कोई भी दर्शक समझ सकता है कि ये प्ले विद इन प्ले है, ये इम्प्रोवाइज्ड प्ले है और ये मौके पे बनाया गया है। इसलिए अब ये वो समय है कि रंग समीक्षा, रंग आलोचना, रंग तनकीद, थिएटर क्रिटिसिज्म एक डिसिप्लिन हो, और उस डिसिप्लिन से हमारे पास वो रंग समीक्षक हो, और हमारे जो इदारे हैं, बेशक संगीत नाटक अकेडमी और भी हैं, वो सिर्फ अखबारों में लिखने वालों को ओन ना करें, वो उन क्रिटिक्स को भी ओन करें जो बकायदा थिएटर करते हैं। अब इसके और बहुत से कारण भी होते हैं। अखबार में आपके नाटक के बारे में किसने लिखा, वो बहुत बड़ा काम। 30-35 साल हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने काम किया हुआ है, आई सल्यूट देम। लेकिन जो रंग समीक्षक, जिसके पास थिएटर का एक एकेडमिक डिसिप्लिन हो, जो रंगमंच चिंतक भी हो, रंगमंच समीक्षक भी हो, जिसको नाटक की भी समझो, रंगमंच की भी समझो, और रंगमंच को एक यानर के तौर पर स्टडी कर सकता हो, वो हमारे नए समीक्षक आ रहे हैं, लेकिन अभी आए नहीं है। ये बहुत सी भाषाओं की स्थिति है जितनी मैं जानता हूँ। हाँ, बाहरली हिंदू अंग्रेजी में बहुत से है, मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं। हेनरी जेम्स एक बहुत बड़े नॉवलकार हैं, उपन्यासकार हैं, लेकिन उनकी थिएटर डायरी की किताब छपी हुई। वो बतौर दर्शक, बतौर क्रिटिक थिएटर देखते थे, लिखते उपन्यास थे। तो प्रोफेशनली, जैसे हमारे पास अब प्रोफेशनल डायरेक्टर हो, हमारे पास प्रोफेशनल डायरेक्टर भी दो तरह के, एक रवि तनेजा जी, साहब सिंह, देवेंद्र कुमार कैटेगरी, जिन्होंने थिएटर की ट्रेनिंग नहीं ली लेकिन फिर भी वो प्रोफेशनल थिएटर करने लगे, जिनमें आत्मजीत भी आते हैं, कीर्ति कृपाल भी आता है। दूसरे वो जो केवल धालीवाल और उनके साथी नीलमान सिंह, उससे पहले हरपाल टिवाना, जिन्होंने बाकायदा थिएटर की ट्रेनिंग ली, वो भी प्रोफेशनल डायरेक्टर हैं। अब पंजाबी भाषा में जिसके बारे में कहा जाता रहा कि यहाँ नाटक नहीं रंगमंच में, यहाँ वो प्रोफेशनल डायरेक्टर हैं जो ट्रेंड भी और नॉन ट्रेंड भी। मैंने अभी एक थीसिस सबमिट करवाया, पंजाबी रंगमंच सर्वेक्षण और मूल्यांकन, उसमें हमने बाकायदा दोनों कैटेगरी के डायरेक्टर लिए कि एक ये डायरेक्टर हैं जो ट्रेनिंग नहीं ली, सेल्फ ट्रेंड है, और ये जो ट्रेंड बाई एनएसडी और पंजाब यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी। सो अब जो भविष्य है रंगमंच का, वो रंगमंच समीक्षक की उसमें दखल अंदाजी होगी और हो चुकी है। आज अगर अच्छी प्रोडक्शंस आ रही हैं तो इसलिए आ रहे हैं कि हमारा दर्शक भी सुचेत हो रहा है और हमारे रंग समीक्षक भी सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी आए नहीं, अभी हम आशावादी हैं। मेरा ख्याल है आरंभक वचन इतने काफी हैं। आगे देवेंद्र जी इसको चलाइए। शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब तुसी बड़ा क्लीयर किया कि रंग चिंतन तो साडी रही परंपरा शुरू तो ही, ते रंग समीक्षा शुरू तो इन्नी नहीं हो सकी जिन्नी का आप समझते हैं कि वो हो जानी चाहिए सी, ते संभावना गल की कि संभावना है क्योंकि नवीं टैक्नीक्स भी आ गई इस वेले उन्होंने शामिल होने तो बाद, जिवें तुसी वीडियो रिकॉर्डिंग के बेस ते गल की, ये नवीं गल सी साडे लई कि रंग समीक्षा का यह आधार भी बन सकता, क्योंकि आप रंगमंच नूं लाइव माध्यम मनते हैं कि लाइव है, पर रिकॉर्ड बेस ते भी आप जे कर लेने एक नवीं विधि या नवीं टैक्नीक आई। डॉक्टर साहब सिंह जी जी सुन रहे हो? मैं तुहानूं एट ए स्ट्रैच 3 बिंदुआं ते तुहाडा मैं ध्यान ले जाना चाहुंदा, तुसीं उन्हां तिन्नां नूं आपस दे विच समाहत करके गल नूं अपने पक्ष रखो। मैं समझदा कि जिस युग दे विच आपां बैठे हैं इस वेले सोशल मीडिया दा इन्ना ज्यादा जोर है कि जिन्हों आदनो काल कह लिए, जो भी काल का नाम देना होवे, हुण संवाद जिहड़ा है यह बहुत ज्यादा मतलब सिकड़ चुका, सुंगड़ चुका है। उहदे नाल की है कि साडीआं कलावां ते बहुत सारा प्रैशर आ गया, बहुत सारियां चुनौतियां साडीआं
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਮੰਚ ਵੀ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੰਗਮੰਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਕਤ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਥੀਏਟਰ ਦਾ। ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਫੋਨ ਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਆ, ਦਰਸ਼ਕ ਕੋਲ YouTube ਪਈ ਆ, ਦਰਸ਼ਕ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਪਏ ਆ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕੀ ਅੱਜ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੋਟੀਆਂ 4 ਹਬਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ, ਬਠਿੰਡਾ ਹੈ, ਪਟਿਆਲਾ ਹੈ, ਮੋਹਾਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਗੈਰਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਥੀਏਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਿਵੇਕਲੀ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਕੂਲ ਆਫ ਡਰਾਮਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਆ, ਪਟਿਆਲਾ ਘਰਾਣਾ ਉਹਦੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਘਰਾਣਾ ਇਹਦੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 4 ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੀਸਰਾ ਬਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਾਸ ਰੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਲਮ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਏ ਡਰਾਮਾ ਕ੍ਰਿਟਿਕ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਅਨੁਭਵ ਰਿਹਾ? ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਲੋਚਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਆਲੋਚਕ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਈ ਦਫਾ ਆਲੋਚਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਗਾਊ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਲੋਚਕ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਸ ਰੰਗ ਕਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਸਕੇ? जी थैंक यू डॉक्टर दविंदर सिंह जी, दविंदर कुमार जी। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਇਹੋ ਜੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਉਠਾਵੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਟੀਚਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦੇ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਦੁਵਿਧਾ ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੁਵਿਧਾ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਚ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਹਿ ਦਈਏ ਥੀਏਟਰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ VC ਕਹਿ ਦਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਵੋ ਸਰਵਾ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠਿਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਬ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਫਾਰਮੂਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ प्रोडक्शन हो गई, वो भी काफी देर बाद पता लगता सी। साथ ही थोड़ा हिंदी वाला जाओ थोड़ा, क्योंकि सारे बच्चे स्टडी कर दे रहे। श्योर मैं भूल गया था इसमें। नहीं कोई बात नहीं। हाँ, ये काफी मुश्किल था कि एक दूर दराज इलाके में कोई आदमी बैठा है, रंगमंच के बारे में जानना चाहता है, वो ये जानना चाहता है कि इस फलानी स्टेट में कैसा थिएटर हो रहा है या कैसी प्रोडक्शंस हो रही हैं, तो उसको काफी वक्त लगता था और कई बार एक गैप भी रह जाता था। हम ये भी कहते थे कि कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देता था कि पंजाबी का थिएटर लीनियर है या पंजाबी थिएटर ऐसा है वैसा है, तो हम कई बार उसको सवाल करते थे, तीखा सवाल भी करते कि तूने देखा है? या इवन स्टेट के अंदर बैठे लोगों को भी हम ये कह देते कि तो पूरे पंजाब का जो थिएटर है उसके बारे में आप तब कुछ कह सकते हो जब आपने देखा है। ये हमारी जो हम प्रैक्टिकल रंगकर्मी है, ये हमारी प्रॉब्लम थी, जिसका जवाब काफी डॉक्टर सतीश कुमार वर्मा दे चुके हैं कि जरूरी नहीं है। अब क्या हो गया, अब कोई प्रोडक्शन होती है, पहले तो डायरेक्टर ही कोशिश करता है कि इसकी रिकॉर्डिंग हो जानी चाहिए, उसके बहुत सारे कारण हैं, कई बार उसने रिकॉर्डिंग भेजनी होती है और बहुत सारे लोग ऐसे फोन वगैरह लेके बैठे तो जो क्लिप्स वगैरह इधर उधर जाती हैं, तो जो दर्शक है उसकी पार्टिसिपेशन अब बढ़ गई है। इस तरह से बढ़ गई है कि वो कोई प्रोडक्शन देखने जाता है, कोई नाटक देखता है, उसके बाद पहली समीक्षा तो दर्शक करता है। वो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कहीं भी डालता है कि आज मैं फलाना नाटक देख के आया हूँ, ये नाटक बहुत अच्छा था, या वो कहता है नाटक बहुत खराब था, या इसमें मुझे ये अच्छा लगा, इसमें वो अच्छा लगा। ये इसको मैं प्रेशर नहीं लेता, मैं ये नहीं समझता कि जो रंगमंच कर रहा है उसके लिए एक प्रेशर बन गया। इससे तो ये है कि आपको ये पता चलता है कि मैंने आज मोहाली में, चंडीगढ़ में एक मैंने नाटक किया, तो ये दूसरे दिन ही या रात को ही
8, 8:30 के बाद उसकी चर्चा शुरू हो गई, वो फैलना शुरू हो गया। तो दिस इज अ पॉजिटिव साइन। थिएटर जब भी कोई आदमी करता है, तो चाहे वो कितनी चीजों, कितनी डायमेंशंस को समझता हो, लेकिन उसके माइंड में ये तो रहता है कि ये नाटक मैं दर्शक के लिए कर रहा हूँ। और हाँ, हर कोई नाटककार, रंगकर्मी जो है, जो निर्देशक है, ग्रुप चलाता है, वो ये चाहता है कि ये जो प्रोडक्शन मैंने की है, इसकी बात दूर तक पहुंचनी चाहिए। तो वो पहुंच रही है। इसको मैं प्रेशर तो नहीं लेता। दूसरी जो बात आपने की है कि पंजाब में जिस तरह से थिएटर हो रहा है, जगह जगह पे थिएटर हो रहा है, 4 जो आपने अलग अलग जगह का नाम बताया, अमृतसर में बहुत हो रहा है, बठिंडा में हो रहा है, पटियाला में हो रहा है। पटियाला में अब कम हो रहा है, वैसे पहले से कम हो रहा है, चंडीगढ़ में हो रहा है, ये हब बने हैं। लेकिन इसके अलावा पंजाब में कम से कम 50 थिएटर ग्रुप हैं जो अपनी अपनी जगह पे थिएटर कर रहे हैं। और थिएटर भी कैसा, किसी ने अपना ओपन एयर थिएटर बना लिया, किसी ने अपना छोटा सा ऑडिटोरियम बना लिया, किसी ने वैसे एक जगह क्रिएट कर ली जहां वो थिएटर हो रहा है। तो इस सब कुछ में जिस मॉडल की हम तलाश कर रहे हैं कि क्या कोई नया मॉडल निकला है, कोई ऐसा हुआ है? जितना भी अब तक 100 या 110 साल का जो थिएटर हुआ है, उसमें रंगमंच जिस मॉडल की वजह से, जो पंजाबी रंगमंच सरवाइव कर रहा है ना, जिसकी वजह से वो जिंदा है, चाहे उसमें टेक्निक आ गई है, टेक्निक हमने सीख ली है, बहुत सारी चीजें, लेकिन मॉडल अभी भी वही है, गुरशरण सिंह वाला मॉडल ही है। चाहे केवल धालीवाल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से सीख कर आया है, चाहे हम इधर उधर से टेक्निक उसमें डाल रहे हैं, लेकिन मॉडल यही है कि दर्शक कौन सा है, पंजाबी थिएटर को कैटर कौन कर रहा है, सिस्टम क्योंकि थिएटर को नहीं चाहता, इसके बारे में हम तो क्लियर हैं। शायद जितनी भी स्टेट्स हैं, सब स्टेट्स में लोग बैठे ये समझते होंगे कि जो सिस्टम है वो थिएटर को नहीं चाहता, क्योंकि थिएटर कभी भी इतना सॉफ्ट नहीं हुआ कि वो सिस्टम को, सत्ता को अप्रिशिएट करे, या उसकी हर बात को अप्रिशिएट भी करे, उसको प्रमोट भी करे। वो तो हर जगह उंगली उठाता है कि ये गलत हो रहा है, इसमें ये होना चाहिए। उसमें कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ लोग हैं जो उसको पॉलिटिकल एंगल से भी उतनी ही सख्ती से, उतनी ही तेजी से, उतनी ही तीक्ष्णता से उठाते हैं कि ये गलत हो रहा है। कुछ लोग हैं उसके जो प्रभाव पड़ रहे हैं, जो जो गलत सिस्टम है उसको जो प्रभाव पड़ रहे हैं, रिश्तों पे प्रभाव पड़ रहे हैं, आपसी रिश्तों पे, या इकोनॉमी पे पड़ रहे हैं, या और हमारे जो बिहेवियर है वो चेंज हो रहा है, वो डायमेंशंस को लेकर जैसे कम्प्लेक्स प्लेस कुछ करते हैं, जिसमें सीधे सीधे सिस्टम की बात नहीं होती, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस वही हैं कि सिस्टम हमें कैसा इंसान बना रहा है, तो उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो ये तमाम चीजें थिएटर में आ रही हैं, लेकिन हर कोई रंगकर्मी ये समझता है कि मैं, पंजाबी थिएटर तो समझता है, पंजाबी थिएटर की क्योंकि शुरुआत ही वहीं से हुई है। जब आईसी नंदा और नोरा रिचर्ड शुरुआत करते हैं, तो शुरुआत ही एक खिलाफत से होती है कि ये जो नजर आ रहा है ये ठीक नहीं है, ये गलत नहीं है, इसके खिलाफ आपने आवाज बुलंद करनी है। तो वो जो टोन हमने पकड़ी है, जो कहते हैं ना कि जैसा जैसा एक संस्कार होता है, हमें वो संस्कार उस तरह से मिले हैं शुरू से ही कि ये गलत है, ये आपके समाज में ये गलत हो रहा है, इसको थिएटर ने प्रमोट करना है। लेकिन जैसे जैसे हमारा थिएटर इवॉल्व हुआ है, तो हम सब्जेक्ट के साथ जो थिएटर की जरूरत है, जो रंगमंच की जरूरत है, जो रंगमंच को टेक्निक चाहिए, जो रंगमंच को डिजाइनिंग चाहिए, उसके जो अलग अलग सेगमेंट्स हैं, उसके बारे में हमने, किसी ने डिपार्टमेंट से सीखा, कोई नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से सीख कर आया, कोई डिपार्टमेंट इंडियन थिएटर से सीखा, कोई यूनिवर्सिटी से सीखा, कोई अपने आप अपने उस्ताद से सीखा। लेकिन आज इस मुकाम तक हम पहुंच गए हैं कि हम नई नई टेक्निक्स सीख भी रहे हैं, हम खुद इवॉल्व भी कर रहे हैं। तो इस स्टेज पर आकर जो रंग आलोचक है, जो समीक्षक है, या जो चिंतक है, उसकी ड्यूटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं समझता हूं पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वो हमेशा रही है, लेकिन मैं जो पिछले 2 साल से वो रास रंग कॉलम लिखता हूं, मैंने क्यों शुरू किया था, या डॉक्टर स्वराज वीर के साथ मेरी क्या डिस्कशन हुई थी कि क्यों इस कॉलम की जरूरत है, उसमें इसी सवाल का जवाब कहीं ना कहीं छुपा हुआ है कि आज जो आलोचना है वो सिर्फ नाटककार के लिए नहीं जरूरी, वो सिर्फ निर्देशक के लिए नहीं जरूरी, वो सिर्फ दर्शक के लिए नहीं जरूरी, वो सिर्फ डिजाइनर के लिए नहीं जरूरी, वो कॉस्ट्यूम वाला, मेकअप वाला कौन है, कौन म्यूजिक वाला है, उसके लिए नहीं जरूरी। वो आलोचना उन सब के लिए जरूरी होने के साथ साथ जो आम आपका अवाम है, जो थिएटर के साथ जुड़ा हुआ है, या जुड़ना चाहता है, या नहीं जुड़ा हुआ, तीनों जो है कैटेगरीज,
उनको भी जो रंग आलोचक है उसने एड्रेस करना है, उनको कहीं ना कहीं थिएटर के नजदीक लेकर आना है, उनको थिएटर की मर्म बतानी है कि थिएटर कैसे होता है। क्योंकि अब जो आलोचक है उसके पास एक लिखित पाठ भी है, जो उसने पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ, ये अलग बात है। जरूरी नहीं कि मैं हर कोई नाटक जब देखने जाऊं, जब उसके बारे में मैंने लिखना है, तो मैं पहले उसकी स्क्रिप्ट पढ़ी है या वहां मैंने स्क्रिप्ट स्टेज पे इनेक्ट होती देखी है। उसके बाद उसका जो डायरेक्टर है, जो उसका डायरेक्टोरियल जो उसने इनपुट दी है, वो भी आपके पास है कि वो डायरेक्टर उसको कंसीव कैसे कर रहा है, उस सब्जेक्ट को जो उसने लिया उसका कॉन्सेप्ट कैसे ले रहा है, उसमें से कौन सी ऐसी पॉइंट है, कौन सी ऐसी बात है जिसको वो बॉटम लाइन बनाकर पेश कर रहा है। जब आप लिखित पाठ को पढ़ते हो सकता है उसमें उसकी बॉटम लाइन कुछ और हो, उसके लिए बेसिक थ्रेड कुछ और हो, लेकिन किस चीज पे वो फोकस कर रहा है डायरेक्टर। उसके बाद आपके पास पूरी स्टेज की डिजाइनिंग है, आपके पास मेकअप है, आपके पास कॉस्ट्यूम है, आपके पास पहरावा है, आपके पास प्रॉप्स की यूज है, आपके पास लाइट्स की यूज है, बकायदा एक्टर्स हैं, एक्टर्स ने कैसे परफॉर्म किया, एक दूसरे के साथ कैसे कोऑर्डिनेशन किया, और आपके पास ऑडियंस है कि उस प्रोडक्शन को ऑडियंस कैसे रिस्पॉन्ड कर रही थी, ऑडियंस अप्रिशिएट कर रही थी या चुपचाप बैठी थी, उसको पसंद कर रही थी या नहीं। लेकिन रंग आलोचक जो है उसकी ड्यूटी यहां से एक स्टेप आगे शुरू होती है कि जितना कुछ उसने देखा उसमें ऑडियंस को इन्वॉल्व करके देखा, लेकिन जब उसने लिखना है उसके बारे में कुछ, तो वो ऑडियंस को जरूरी नहीं कि अपने अपने दिमाग में रखे। वो ये भी समझ सकता है कि ऑडियंस जो रिस्पॉन्स दे रही थी उसका कारण कोई और था, जो टोटल प्रोडक्शन थी वो इन सिंक नहीं थी, वो सब्जेक्ट के साथ इंसाफ नहीं हो रहा था। तो जो कुछ भी पॉइंट ऑफ व्यू ऑडियंस को इन्वॉल्व करके निकला, जो हमारा क्रिटिक है, जो हमारा आलोचक है, इन सिंक भी हो सकता है। उसका जो जो पॉइंट ऑफ व्यू वो बना रहा है, क्योंकि उसने एंड में अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाना है। उसने क्या सोचा, उसने क्या समझा कि लिखित पाठ और डायरेक्टर और एक्टर्स और डिजाइनिंग और ऑडियंस, इन सबको इकट्ठा करके क्या वही चीज निकल कर आई जो नाटक कहना चाहता था, वो क्या चीज निकली या नहीं निकली। उसका इन सिंक भी हो सकता है कि जैसे ऑडियंस रिस्पॉन्स दे रही थी सचमुच में बेहतरीन प्रोडक्शन थी, लेकिन उसका टोटली ऑपोजिट भी हो सकता है। यहीं पे उसका टकराव भी शुरू होता है। जब डायरेक्टर, जो रवि जी बात कर रहे थे, डायरेक्टर बोलता है कि इसको तो आता ही नहीं, इसको इसको तो नाटक मेरा समझ ही नहीं आया। वो प्रॉब्लम क्यों है, उसकी मैं प्रैक्टिकल आपको प्रॉब्लम बताता हूँ। वो प्रॉब्लम इसलिए है कि हमारे पास जो विशेषज्ञ रंगालोचक होता है उसकी कमी है। जब विशेषज्ञ होता है ना, जो जो सिर्फ रंगालोचक है, तब डायरेक्टर ज्यादा इस तरह की टिप्पणी नहीं करता। उसको पता होता है ये क्रिटिक है, ये अपने एंगल से। जब हम जैसे लोग जो खुद डायरेक्टर भी हैं, नाटककार भी हैं, एक्टर भी हैं, हम ही आलोचक हैं, हमें आलोचना करनी पड़ रही है जब हम करना चाहते हैं, तब ये सवाल उठता है। क्योंकि वो कंपैरिजंस करते हैं कि तेरी प्रोडक्शन, तेरी भी देखी हुई है मैंने प्रोडक्शंस, तुम्हें हमारी प्रोडक्शन समझ नहीं आई, या तू बायस्ड है, या तू जानबूझकर ये कर रहा है। सो ये तमाम चैलेंजेस हैं। लेकिन मैं चाहता हूं, मैं ये समझता हूं, जितना भी अब तक मैंने लिखा है, ये मैं समझता हूं कि उसकी डबल ट्रिपल जिम्मेदारी है। एक तो वो हिस्ट्री लिख रहा है, इतिहास लिख रहा है कि फलान समय में 2020 में या 2018 में कैसा थिएटर हो रहा था, उसमें थिएटर में क्या नई टेक्निक्स इवॉल्व हो रही थी, कैसे कैसे नए सब्जेक्ट्स आ रहे थे। फिर उसने ये भी नोट करना है कि कौन सी रंगमंच की नई टेक्निक्स आ रही थी, डायरेक्टर्स कैसी नई डिजाइनिंग ला रहे थे, कैसे नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, एक्टर्स कैसे इवॉल्व हो रहे थे। जिस एक्टर को मैं 2010 में देख रहा हूं, मैं आपके सामने एक आलोचक के साथ एक एक्टर बैठा हूं। अभी जो मैं परफॉर्म करके आया हूं पंजाब में, मैं ये तो क्रेडिट नहीं लेना चाहता कि मैं कोई नई थ्योरी इवॉल्व करके आ गया, लेकिन मेरा अंदर ये कहता है कि मैंने पिछले 3 दिनों में जो मैंने एक्टिंग की, साथ में मेरा अंदर का प्ले राइट था, दोनों ही थे, तीसरा कोई नहीं था। वहां ना तो कॉस्ट्यूम थी, ना तो मेकअप था, ना कोई लाइटिंग थी, ना कोई म्यूजिक था, ना ही कोई और बहुत ज्यादा प्रॉप्स थे। मैं था, मेरी स्क्रिप्ट थी, या मेरे सामने दर्शक थे। तो मुझे कुछ नया इवॉल्व करना था कि थिएटर लगे, ये थिएटर लगे। जो जो एक किसान यूनियन का लीडर बोल रहा है, हो सकता बातें मैंने भी वही करनी हो, लेकिन इसमें एक डिफरेंस हो। ये जो मैं कर रहा हूं वो थिएटर लगे, तो कैसे लगेगा? मेरे पास स्टेज नहीं है, 8 फीट की स्टेज है जिसकी डेप्थ सिर्फ 6 फीट की है, मेरे पास सिर्फ 2 माइक हैं,
प्रॉप्स मैं गाड़ी में रख के जो एक दो ले गया मेरे पास वो है, और मेरे पास ना ऑडिटोरियम है ना मेरे पास ओपन एयर थिएटर है। मेरे पास क्या है, कम से कम 3-4 हजार 5 हजार की ऑडियंस है। वो ऑडियंस कहाँ पे बैठी है? सड़क के किनारे। सड़क पे गाड़ियां चल रही हैं, चाह पां सब हो रही है, वहां पे सब है। तो स्पीकर लगे हुए हैं इधर उधर, और कुछ दर्शक स्टेज के इर्द गिर्द भी बैठे हैं, और कुछ पीछे भी खड़े हैं। पीछे मेरे पास कोई पर्दा नहीं है कि मैं उस पर पर्दा लगा दूं, कोई इतनी सुविधा नहीं है, वो धरने पे लोग बैठे हैं। लेकिन वहां मैं गया हूं, मेरे माइंड में यह है कि मैं थिएटर करने आया हूं, यहां भी मैंने थिएटर करना है। तो फिर उसमें जो जितना कुछ आपने एक्टिंग में मॉड्यूलेशन सोची है, जितनी वेरिएशन आपने एक्टिंग में सोची है, कि जो कुछ आप सिर्फ कर तो ऑरिटरी ही रहे हो, आप ऑरेटरी ही कर रहे हो असल में, क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा एक्टर्स भी नहीं है। लेकिन उस ऑरेटरी को एक्टिंग कैसे बनाना है, कैसे उसमें उतार चढ़ाव लाना है, कैसे इमोशंस लाने हैं, कैसे मूवमेंट्स देनी है, कैसे बॉडी लैंग्वेज यूज करनी है, ये चीजें हमारा रंगलोचक अगर नहीं पकड़ेगा, अगर वो सिर्फ ऑडिटोरियम में हो रही परफॉर्मेंस को ही पकड़ेगा, तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं जो हमारा थिएटर हो रहा है उसमें जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, जो थिएटर चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं यहां भी थिएटर करूंगा, यहाँ 250-300 लोग एसी में बैठे हैं, मैं वहां भी थिएटर करूंगा, जो 5000 लोग धूप में बैठे हैं, लेकिन करूंगा मैं थिएटर, उसको कौन पकड़ेगा, उसको कौन हिस्ट्री में कौन लिखेगा? और जो आने वाला दर्शक है या आने वाला कलाकार है, उसको कैसे पता चलेगा कि तब जो हो रहा था वो क्यों हो रहा था, वो कैसे हो रहा था, कौन लोग थे जो कर रहे थे, और उनके पीछे कौन सा मॉडल था, किससे प्रेरित थे वो, किसने उनको सिखाया था, किसने ये बात बताई थी कि ऐसे भी थिएटर हो सकता है। तो इसीलिए तो मैं इसको ये चैलेंज मेरा बंद हो गया कुछ या कुछ चल रहा है? ऑडियो ऑडियो चल रहा है चल रहा है, मुझे लगा जैसे ऑडियो वीडियो को बंद हो गया। नहीं। तो ये मैं जो डॉक्टर वर्मा कह रहे हैं, बिल्कुल उनके साथ सहमत होते हुए मैं ये कहता हूं कि रंग आलोचक की जिम्मेदारी छोटी सी नहीं है। एक्टर अगर अपने आप को किंग समझता है, अगर नाटककार अपने आप को किंग समझता है, सम्राट समझता है, डायरेक्टर कहता है कि मैं कैप्टन हूं इस सारी प्रोडक्शन का, तो रंग आलोचक की जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है, ताकि जो कंफ्यूजन्स हैं, हमारे आज भी एक्टर्स कंफ्यूज्ड हैं, हमारे आज भी जो प्रोडक्शन करते हैं डायरेक्टर्स हैं, वो स्वीपिंग स्टेटमेंट्स दे देते हैं। क्यों देते हैं वो? इसीलिए कि खुद तो कभी वो इतना समझने की कोशिश नहीं करेंगे कि जो फलान बंदा सिंपल थिएटर करता था, फलान बंदा हरपाल टिपाणा जैसा इतना टेक्निकली गिफ्ट थिएटर करता था, ये दोनों थिएटर एक साथ एक ही लोग हैं, लोग तो नहीं चेंज हुए, दर्शक तो वही है ना, पंजाब के ही है ना। तो दोनों थिएटर को लोग क्यों देख रहे हैं, दोनों को अप्रिशिएट क्यों कर रहे हैं, दोनों की रिस्पेक्ट भी क्यों है, दोनों की एक्सेप्टेबिलिटी भी क्यों है, ये कौन समझाएगा? या तो हम खुद ही इतने सियाने हो जाएं कि हमें ये समझ आ जाए कि ये भी है, ये भी है और ये भी है, तो कौन समझाएगा? वो रंग आलोचक ही समझा सकता है। रंग आलोचक को मतलब प्रैक्टिकल चीजों का भी ध्यान रखना होगा, जो हमारा चिंतन है उसका भी ध्यान रखना होगा, उसको थ्योरीज का भी ध्यान रखना होगा कि कौन सी थ्योरी है। अगर ब्रेक थिएटर कर रहा था तो कैसा कर रहा था, अगर इब्सन रियलिस्टिक थिएटर नाटक लिख रहा था तो कैसा लिख रहा था, बाकी लोग हैं कैसे उन्होंने लिखे, हम पंजाबी में किसका अनुसरण ज्यादा कर रहे हैं, किसका हम नहीं कर रहे हैं, किसको हम फॉलो कर रहे हैं, किसको नहीं कर रहे हैं। लेकिन इन बातों को सिर्फ नाटककार तक सीमित हमें नहीं रखना होगा, सिर्फ निर्देशक तक सीमित नहीं रखना होगा। हमें इन चीजों को मैं ये तो नहीं कहता कि आप इतना सतही कर दें, हम इसको सुपरफिशियल कर दें, लेकिन इसको सिंपल करना बहुत जरूरी है। इसको सादा लफ्जों में एक्टर्स तक, डायरेक्टर्स तक और ऑडियंस तक पहुंचाना जरूरी है। मुझे आज भी याद है डॉक्टर सवराजवीर की वर्डिंग कि जब मैंने रास रंग लिखना शुरू किया, 3-4 कॉलम के बाद मुझे एक हमारे पंजाब के एक फेमस नाटक निर्देशक का मुझे फोन आया कि साहब तुम वो जो जिसको डॉक्टर वर्मा को शब्द दे सकते हैं कि तुम थ्योरी नहीं देते उसमें, तुम जो भाषा इस्तेमाल करते हो वो चिंतन की भाषा नहीं है, तुम भाषा जो इस्तेमाल कर रहे हो वो कुछ और है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं थोड़ा सा हिल गया। तो डॉक्टर स्वराजवीर से बात हुई तो उन्होंने बोला कि साहब मुझे ये बताओ, जो तुम लिख रहे हो किसके लिए लिख रहे हो, पहले ये डिसाइड करो। क्या तुम सिर्फ उनके लिए लिख रहे हो जिनको पहले से समझ है, या तुम उसके लिए भी लिख रहे हो जो 8-10 जमात ही जिसने पढ़ी हुई है, जिसने कभी कभार ही नाटक देखा, क्या उसको भी जोड़ना तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती कि वो भी बने? और आज मैं मतलब ये पूरे प्राउडली आपके साथ कहता हूं कि ऐसे लोगों के फोन आते हैं जिन्होंने कहते अच्छा थिएटर ऐसा होता है, थिएटर में इतनी मेहनत होती है,
थिएटर में ऐसे ऐसे सोचते हैं आप लोग कि फलान डायलॉग बोला तो क्यों बोला, फलान मूवमेंट ली, एक्टर ने हाथ हिलाए तो क्यों हिलाए थे, उसने आंखें बंद की थी तो क्यों की थी, वो आधा झुका था तो क्यों झुका था। ऐसी बातें मैं करता हूं उसमें कभी कभी, तो उसको लगता है ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसका मतलब थिएटर के साथ जुड़ना चाहिए। आम साधारण वो फोन आते लोग कि हमने तो कभी देखा ही नहीं, आज हम देखना चाहते हैं, हमें बताना पटियाला के नजदीक कहाँ थिएटर हो रहा है, हमें बताना संगरूर के नजदीक कब थिएटर हो रहा है, बठिंडा कब कोई नाटक कर रहा है, हमें बताना जरूर। तो रंग आलोचक ने जहां आलोचना में सिद्धांत देने हैं, वहां उसे ये एक ब्रिज भी एक पूरा करना पड़ेगा कि नाटककार, निर्देशक, एक्टर, डिजाइनर जो कुछ कर रहे हैं, दर्शक जो देख रहा है और वो दर्शक जो नहीं देख रहा है, वो उनको आपस में कैसे जोड़ना है, उन तक कैसे इस चीज को एक रिच तरीके से बताना है। मुझे लगता है इसको शब्द दे सकते हैं डॉक्टर वर्मा, लेकिन मुझे लगता है ये जिम्मेदारी है। और मैं कोई आलोचक नहीं हूं, मैं सीधा सब इस बात की मैं मानता हूं, इस बात को एग्री करता हूं, लेकिन मैं ये जिम्मेदारी जरूर समझता हूं कि किसी नाटक की अगर वो चाहे रिपोर्टिंग है, चाहे उसका क्रिटिसिज्म है, चाहे कुछ है, उसमें ये चीज तो जरूर होनी चाहिए कि ये सिर्फ उस स्क्रिप्ट की स्टोरी नहीं सुनानी है हमें, कि जो स्क्रिप्ट हमारे सामने जब हमने पढ़ी, जहां स्टेज पे लिखी, उसकी कहानी नहीं प्यासा कहां की तरह सुनानी है कि यहां से नाटक शुरू हुआ था, वहां होता, इसमें ये कलाकार थे, ये ऐसे, इसने कॉस्ट्यूम डिजाइन की थी, इसने क्या। हमें ये भी बताना होगा, अगर हम ये कहते हैं कि इसकी कॉस्ट्यूम अच्छी नहीं थी, इस नाटक की कॉस्ट्यूम अच्छी नहीं थी, ऑडियंस कह सकती नहीं कॉस्ट्यूम तो बहुत अच्छी थी, हमें तो बड़ी रिच कॉस्ट्यूम लगी, बड़ा कपड़ा था, शानदार था। तो क्रिटिक ने यह बताना है कि अच्छी क्यों नहीं लगी, एप्ट नहीं थी, उस ऑडियंस उस प्रोडक्शन को एनहेंस नहीं कर रही थी, उसको हेल्प नहीं कर रही थी, डिस्टर्ब कर रही थी। अच्छी तो थी, मेकअप तो बहुत कमाल का था, बहुत हैवी था, लेकिन प्रोडक्शन को, उस नाटक को ऐसा मेकअप नहीं चाहिए था, उसके लिए ज्यादा था। जहां उसने ये बताना है कि कोई सेट नहीं था, स्टेज पे कोई प्रॉप यूज नहीं हो रही थी, एक्टर ही था, लेकिन उसको सचमुच डिजाइनिंग की जरूरत नहीं थी। ये सब चीजें, इस तरह की बहुत सारी चीजें मुझे लगता है कि आलोचक ने बतानी है, रंगमंच आलोचक ने बतानी है। और साथ में मैं फिर उसी बात पे आप लोगों का फोकस लाना चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ ये थिएटर करने वालों के लिए रंगमंच आलोचना नहीं होनी चाहिए, ये जो साधारण लोग बैठे हैं उनके लिए भी आलोचना होनी चाहिए। कुछ थ्योरीज हमारे पास हैं, कुछ सिद्धांत हमारे पास हैं जिनको हम पढ़ सकते हैं, कुछ सिद्धांत हम अब बना रहे हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स अब हम कर रहे हैं। जो चैलेंजेस सोसाइटी ले रही है, वो चैलेंजेस थिएटर भी ले रहा है, क्योंकि थिएटर ने एक प्रण ले लिया कि जो मर्जी हो जाए, हमें थिएटर करना है। ऑडिटोरियम नहीं खुल रहा है, ओपन एयर है तो भी करना है, ओपन एयर थिएटर नहीं खुल रहा है तो भी कोई बात नहीं, लोग तो हैं मेरे पास, दर्शक तो, फिर भी मैंने करना है। उस स्पिरिट को कहीं आलोचक को पकड़ना होगा कि क्या ये पागल लोग ही हैं सचमुच, या इनके दिमाग के पीछे कुछ थ्योरी चल रही है, कुछ है इनके पास, कुछ कुछ टैलेंट है ऐसा जो इन्होंने सोच लिया कि इसको ऐसे भी कर दें, इसको थोड़ा घुमा दें तो थिएटर हो सकता है। ये बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। ये आलोचक को पहले तो चैलेंजेस एक्सेप्ट करने होंगे, फिर कैसे अपने आप को उसके कैपेबल करे कि ये चीजें मैं सिंपल तरीके से लोगों तक पहुंचा सकूं। सिंपल का मतलब सादा, सिंपल का मतलब सुपरफिशियल नहीं। शायद प्रिंसिपल और वीसी के सामने इससे ज्यादा बातें नहीं करेंगे। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਵੀਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਖੂਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੰਡਰਫੁਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗ ਜਗਤ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। 106 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਰੰਗ ਪਰੰਪਰਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਟ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੋਕ ਧਰਮੀ, ਨਾਟ ਧਰਮੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ। 106 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਰਾਮਾ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਕੋਈ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕਮਲੇਸ਼ ਟੋਪਲ ਜੀ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆਪ ਲਿਖੀ ਹੈ, रंगमंच की एक सदी, केवल धालीवाल जी ने थोड़ा काम किया इस प्रकार का, पर फिर भी गिनती का बहुत ज्यादा काम नहीं हो सकिया है कि कोई एक क्रिटिक जिवें डॉक्टर साहब सिंह ने गल की, इन्होंने चंडीगढ़ के जिहड़े नाटक देखे उन्होंने आधार बना के लिख दिता, किसी ने अमृतसर के देखे अमृतसर को आधार बना के देख लिता। होलिस्टिक व्यू दे नाल इन टोटैलिटी जे असीं करिए पंजाबी रंग आलोचना
ਕੋਈ ਐਸੇ ਆਲੋਚਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਘਾਟ ਹੈ? ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਰਿਹਾ, ਥੀਏਟਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ 'ਚ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅਭਿਨੇਤਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੈਰੀਕੂਲਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਡਰਾਮਾ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕੈਰੀਕੂਲਮ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਮਾ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭਰਮੀ ਰੰਗ ਪਰੰਪਰਾ ਬਣ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੰਪਰਾ ਬਣ ਸਕੇ, ਰੰਗ ਆਲੋਚਕ ਦਾ ਬਾਅਦ ਪਰੰਪਰਾ ਬਣ ਸਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ? सबसे पहली बात तो ये कि आज रवि ने ये नहीं बताया कि आज का जो ड्रेस कोड था वो ब्लू था। तो रवि जी भी ब्लू वाले हैं, देवेंद्र जी ब्लू वाले, मैं भी ब्लू वाला, और साहब सिंह का ब्लूइश ग्रीन सोफा है, कर्टन जिसे ड्रामा ग्रीन कहते हैं, और देवेंद्र के तो फूल भी नीले रंग के हैं। ये मैं नीला रंग इसलिए कह रहा हूँ कि समुद्र का रंग भी नीला है, आसमान का रंग भी नीला है, धरती पे बैठ कर हम बातें कर रहे हैं। तो हमारा रंगमंच समुद्र जितना गहरा, आसमान जितना ऊंचा और धरती जितना चौड़ा, ये हमारा रंगमंच है। अब जैसे साहब, सबसे पहले तो मैं तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दूंगा यार कि नाउ यू आर ए प्रोफेसर ऑफ थिएटर। अब ये तो मुझसे डेजिग्नेशन ले लो, अगर किसी यूनिवर्सिटी में मेरी चल गई तो कोई बड़ी बात नहीं, आपको वहां प्रोफेसर लगा दो। वो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरों की क्वालिफिकेशन ये भी होती है, एक होती है MA PhD लटरम पटरम ये वो, लेकिन साथ में एक और भी होती है, और ए मैन ऑफ एमिनेंस। तो आप पर रवि 2 तो नए प्रोफेसर हो गए मेरे पास, आज का ये बेनिफिट हो गया। दूसरी बात जो देवेंद्र जी ने कही है, ऐसा है देवेंद्र, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे रंगमंच में समीक्षक नाम का, मैं माफ कीजिए जो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि मैं अपने लिए कर रहा हूं, कि समीक्षक नाम का जंतु पाया नहीं जाता जी, कभी भी इस तरफ ध्यान ही नहीं गया। बिकॉज पंजाब में तो खासकर कि वी आर अफ्रेड ऑफ एवेलुएटर्स। हम अपनी कहते हैं, अपनी सुनते हैं, अपनी मनवाते हैं, लेकिन किसी की सुनते नहीं। इसलिए जितनी भी समीक्षा की समीक्षा होती है वो यही होती है कि इसने ऐड कर दी, इसने ये कर दी, इसने वो कर दी। अब मैं इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकल कहना चाहूंगा। ये जब हम कहते हैं ना कि हम ही नाटककार हैं, हम ही निर्देशक हैं, हम ही समीक्षक हैं, ये पूरी दुनिया में ऐसा रहा और मुझे लगता है कि अच्छी बात भी रही। जैसे ब्रेख्त बहुत बड़े नाटककार, बहुत बड़े निर्देशक, बहुत बड़े समीक्षक, उनकी किताब आप पढ़िए द मेकिंग ऑफ डायलॉग, ब्रेख्त ऑन थिएटर पढ़िए, या उनके बारे में जॉन विलेट की किताब द थिएटर ऑफ बर्टोल्ट ब्रेख्ट पढ़िए, पीटर ब्रूक की द एम्प्टी स्पेस पढ़िए। तो जितना भी, या मार्टिन एस्लिन द एब्सर्ड थिएटर पढ़िए, या और नजदीक आ जाएं तो उत्पल दास जी की टुवार्ड द रेवोल्यूशनरी थिएटर पढ़िए, बादल सरकार की द थर्ड थिएटर पढ़िए। अब ये जितनी भी मैं आपको समीक्षा की किताबें बता रहा हूं, वो रंगकर्मी और नाटककार, निर्देशक सब कुछ है जिन्होंने उन बातों को समझा। अब ये वो लोग हैं जिन्होंने रंग चिंतन किया, रंग चिंतन किया। मैं जब भी कभी रंग चिंतन की बात करता हूं तो मैं उत्पल दत्त की एग्जांपल देता हूं। उनकी किताब है टुवार्ड्स ए रेवोल्यूशनरी थिएटर। उसमें वो लिखते हैं कि जब कोई एक्टर आता है स्टेज पे, साहब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब एक्टर स्टेज पे आता है तो डायरेक्टर की तो आइडियोलॉजी है, एक नाटककार की भी आइडियोलॉजी है, लेकिन जो एक्टर की आइडियोलॉजी है वो भी उसके कैरेक्टर में आती है। और ये मैंने तजुर्बा किया। मेरे एक नाटक में देवेंद्र कुमार ने भी अभिनय किया था, सत बगाने अजमेर सिंह औलख। तो मेरा एक्टर था तेजवंत मांगट, वेरी वर्सेटाइल एक्टर। तो मैं उसको जो कैरेक्टर देता था, प्ले देखने के बाद लगता था कि इस प्ले का हीरो यही है। अगर उसने एक कैरेक्टर किया तो प्ले का सेंटर कैरेक्टर वो बन गया, उसने कोई और कैरेक्टर किया तो वो बन गया। अब जो एक्टर है उसकी अपनी कैपेसिटी, अपनी कैपेबिलिटी, अपनी आइडियोलॉजी भी वहां पे रोल अदा करती है। इसी तरह दर्शक की भी आइडियोलॉजी रोल अदा करती है। अब समीक्षक के बारे में जैसे देवेंद्र जी ने कहा कि मैदान खाली रहा, कमलेश उत्पल जी ने थिएटर क्रिटिसिज्म पे PhD किया है और बहुत से लोगों ने किया हुआ है। लेकिन एक, अगर ये रंगकर्मी बुरा ना मनाए मेरी बात का, जो भी थिएटर डिपार्टमेंट्स वाले हैं, एक अजीब किस्म का विरोधाभास हो गया कि जो लिटरेचर वाले हैं वो तो सिद्धांत
चिंतन करेंगे। और जो थिएटर डिपार्टमेंट कहते हैं हमारा तो प्रैक्टिकल काम है, हमारा तो काम प्रैक्टिकल है, हमारा तो काम प्रैक्टिकल। और आपको इस बात की हैरानी होगी कि जितने भी एनएसडी से लेकर पंजाब यूनिवर्सिटी आपको समीक्षक मिलेंगे, वो ज्यादा वहां के टीचर्स मिलेंगे। वो बेशक देवेंद्र अजंकुर हो, JN कौशल जी हो, लेकिन स्टूडेंट्स में से बहुत कम क्रिटिक निकले, बहुत कम समीक्षक निकले। इसका कारण बहुत बड़ा ये है, मैं एनएसडी के बारे में कमेंट नहीं कर सकता, वो बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं यूनिवर्सिटी में देखता हूँ अपने डिपार्टमेंट्स को कि थिएटर वाले लड़कों को या लड़कियों को उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ ऐसा जोड़ दिया जाता है कि वो एकेडमिक ट्रेनिंग नहीं कर पाते या उनको करवाई नहीं जाती। और ये एक बहुत बड़ा गैप है। मैं एक अपने अध्यापक दोस्त का नाम नहीं ले सकता, वो कहता है डॉक्टर साहब मैं तो कोई किताब पढ़ता ही नहीं, मेरी ओरिजिनलिटी खराब हो जाती है। अब थिएटर की ओरिजिनलिटी किताब पढ़ने से खराब होगी जहां पे, तो वहां किस किस्म का एटमॉस्फेयर होगा। दूसरी बात, जो हमारा रंग समीक्षक है, हमें उसको मानना होगा, उसको एक स्टेटस देना होगा और उसके पास चलकर जाना पड़ेगा। मैं इसको और अच्छी तरह समझा देता हूँ कि जैसे कोई नाटककार है, निर्देशक है, रंगकार, साहब सिंह, देवेंद्र, मैं सभी बैठे, ये बिल्कुल वैसी ही बात है कि क्लासरूम में आपका बच्चा भी पढ़ रहा है। जब आप टीचर हो तब भी आप उस बच्चे को बाकी बच्चों के साथ समझोगे, जब आप पेपर सेट करते हो तब भी उसको बराबर समझोगे, जब आप पेपर चेक करते हो तब भी बराबर। अब जब आप नाटककार निर्देशक बने तो आपको नाटककार को नीचे रखना पड़ेगा, निर्देशक को ऊपर लाना, और जब आप समीक्षक बन गए तो फिर आपको निर्देशक को नीचे रखना पड़ेगा। जैसे साहब सिंह थिएटर के इस समय हमारे अच्छे क्रिटिक, लेकिन जब ये क्रिटिसिज्म करते हैं तब इनके अंदर वाला नाटककार रंगकर्मी नहीं बोलता, वो समीक्षक ही बोलता है। और इसलिए जब वो किसी बात का आह्वान भी करते हैं तो इसी दृष्टि से करते हैं कि हमारे थिएटर में क्या क्या नया हो रहा है। मेरा ख्याल है कि पिछले 2 साल में पंजाबी थिएटर में जो नया हुआ उसको जैसे साहब सिंह ने पकड़ा है, ये पहले कभी हुआ नहीं। कभी मैं कॉलम लिखता था अजीत अखबार में अदब तैयार का, तो जब मैं थिएटर के बारे में कॉलम लिखता था तो ऐसे लिखता था। लेकिन जब आप ये समझेंगे कि थिएटर क्रिटिक आपका दुश्मन नहीं, आपका दोस्त नहीं, ना वो दोस्त है ना दुश्मन, वो दोस्त दुश्मन है, उसने आपकी कमियां भी निकालनी है, आपको कुछ बताना भी। कई बार मैं क्योंकि यूथ वेलफेयर का डायरेक्टर रहा हूँ, 8 साल 30 साल से यूथ वेलफेयर में थिएटर किया, तो जब आप साहब रिकॉर्डिंग की बात कर रहे थे, रिकॉर्डिंग तो इसलिए भी करनी होती है भाई कि आपकी प्रोडक्शन देखकर फिर हमने भी तो प्ले करना है। जब आपकी कैसेट मिल गई तो वही बना बनाया मिल गया खेल। अब यूथ फेस्टिवल में क्या होता है कि जो नेशनल लेवल पे प्ले होते हैं वो प्ले में ज्यादा फिल्मों वाले इन्वॉल्व होते हैं, तो उसकी सीडी चलती चलती रोडे लंडे पहुंच जाती है, तो वहां से फिर ऊपर पहुंचती है। तो ये जो फोटोस्टेट कॉपी है थिएटर की, और ये बहुत बड़े लेवल पे होती रही है, मैं नाम नहीं ले सकता। अलकाजी साहब में मैंने कुछ दिन पहले एक राइटअप लिखा है 15-20 पन्नों का, वो समकाली साहित्य में छपना। अब एनएसडी ने कितने बड़े बड़े डायरेक्टर निकाले, लेकिन अलकाजी साहब के दौर के जितने बड़े डायरेक्टर हैं मैंने उनकी प्रोडक्शन देखी है। वो मैंने पटियाला में उनके स्टूडेंट की प्रोडक्शन देखी, वही प्रोडक्शन मैंने चंडीगढ़ में देखी, उनकी ब्लॉकिंग हर चीज बिल्कुल सेम। वो अलकाजी साहब की फोटोस्टेट कॉपीज थी जब वो नाटक करते थे जो एनएसडी से सीख कर आए। इसलिए हमारे पंजाब में भी जब एक पहली बार एनएसडी के हमारे डायरेक्टर आए, उन्होंने शुरू में सोफोक्लीज, इडिपस बहुत नाटक किए, लेकिन 3-4 साल बाद फिर वो पंजाब का थिएटर करने लग गए। अब जो वहां पे देखा वो सीखा, वो प्रोडक्शन तो वैसी होगी, लेकिन जब आप कुछ नया करेंगे तो अलकाजी साहब 1965 से लेकर 62 से 77 15 साल वहां पे रहे, लेकिन 77 के बाद जो डायरेक्टर्स आए वो सभी, क्योंकि अलकाजी साहब की ट्रेनिंग इंग्लिश थिएटर की थी, वेस्टर्न थिएटर की थी, और वो पेंटर थे, तो जो नए डायरेक्टर आए वो जिस जिस इलाके से आए थे, भारत की अलग अलग प्रांतों की उनके पास समझ थी, इसलिए भारत का लोक नाट्य वो सभी उस रूप में नाटक खेले गए, और कुछ विदेशी नाटक भी उन शैलियों में खेले। एक एक नाटक अलग अलग शैली में खेला गया। अब जब एक ही नाटक रियलिस्टिक स्टाइल में खेला जाता है, वही नॉन रियलिस्टिक में खेला जाता है, वही नौटंकी शैली में खेला जाता है, तो कौन बताएगा दर्शक को या पाठक को कि इसमें क्या हो गया, टेक्निकली क्या हो गया। जैसे मैंने उत्पल दास जी की एग्जांपल दी, अभी साहब अपने एकल नाटक की बात कर रहे थे, मुझे तो शायद समा वाली डांग है,
हो सकता है इन्होंने कोई और नया इन दिनों लिखा हो किसान आंदोलन में। तो पीटर ब्रूक की एक किताब है द एम्प्टी स्पेस, उसकी पहली लाइन यही है, गिव मी एनी एम्प्टी स्पेस आई विल कन्वर्ट इट इनटू थिएटर। एक खाली जगह को आप रंगमंच में तब्दील कर सकते हैं। अब हमारे पास समीक्षक वो चाहिए, वो हर जगह ये ना देखे कि सेट कैसा। जब मैं रंगमंच डायरेक्टर बना यूथ वेलफेयर का, तो पुराने नियम मुझे सभी काटने पड़े। क्यों? वो जजेस को परफॉर्मा देते थे, सेट के इतने नंबर, कॉस्ट्यूम के इतने नंबर। मैंने कहा भाई अगर बिना कॉस्ट्यूम के प्ले होगा नंबर कैसे दोगे आप? सेट नहीं होगा तो कैसे आप नंबर दोगे? इसलिए कोई नंबर नहीं बांटने, आपने पूरी प्रोडक्शन देखना है। हो सकता है कोई एक ऐसा प्ले हो जो बेयर स्टेज पे हो जाए, जिसमें कोई लाइट ना हो, जिसमें कोई कॉस्ट्यूम ना हो, जिसमें कोई सेट ना हो, लेकिन वो फिर भी बहुत अच्छी प्रोडक्शन हो जाए। एकल व्यक्ति बहुत अच्छी उसमें थी। अब हमारे पास जो माइम करने वाले हिंदुस्तान के इतने बड़े बड़े माइम के आर्टिस्ट हैं, तो वो एक ही एक्टर सेट भी क्रिएट कर देता है। मैंने वो दया प्रकाश सिन्हा का एक दया शंकर की डायरी, सिन्हा साहब का नाटक देखा, वो आशीष विद्यार्थी ने किया था, आपने देखा होगा, पंजाब में प्रोडक्शन हुई। अब एक ही एक्टर कितने करैक्टर निकालता है, लेकिन वो करैक्टर नहीं निकालता, उतने सेट भी निकालता है, उतने कॉस्ट्यूम भी निकालता है। वो इतनी सारी, जैसे राकेश बेदी एक नाटक करके गए पटियाला में, उसमें ऐसा ऐसा उन्होंने, एकल प्रोडक्शन थी, एक वही एक करैक्टर होता है, 25-30 वो करैक्टर निकालते हैं। महानगर का एक झोपड़पट्टी टाइप चाल का एक कमरा है, तो उसको कोई लड़की मिल जाती है जिसको वो बचाकर लाया है। अब वो लड़की को टॉयलेट जाना है, तो वो वही एक्ट्रेस का भी रोल कर रहा है। वो कहती मैं कहाँ जाऊं? वो कहती इस कमरे में तो कोई जगह नहीं, बाहर जाओगी तो तुम्हें कोई पकड़ लेगा। यहाँ एक किचन है, कमरे का एक कोना किचन है, वहां पे छोटी सी एक नाली है, वहां पे ट्राई कर लो अगर हो जाए। कैन यू इमेजिन के राकेश वादी जैसा एक्टर वो पूरा डिस्क्रिप्शन स्टेज पे दे रहा है, और उस डिस्क्रिप्शन में कहीं विभत्सता नहीं है, कहीं वहां पे कोई अश्लीलता नहीं है। तो एक एक्टर कंप्लीट थिएटर हो सकता है, एक एक्टर कंप्लीट थिएटर हो सकता है। इसलिए समीक्षक को ये समझना और समझाना होगा। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि समीक्षक की क्या भूमिका है। मैं यूथ वेलफेयर का डायरेक्टर था, तो वहां पे अक्सर जजमेंट के बाद ही होता था कि जी हमारे साथ जजमेंट गलत होगी, और जिसका प्ले फर्स्ट आ गया उसकी जजमेंट ठीक होगी, बाकी सबकी गलत होगी। मैंने ये किया कि जजमेंट के बाद जितना भी जरूरी काम हो, बेशक 3 घंटे से बैठे हो, उनको कैसा भी प्रेशर हो, वो स्टेज पे आके जजमेंट सुनाएंगे। तो एक बार फाइन आर्ट्स पेंटिंग का था, तो वहां पे जी ये जजमेंट गलत हो। तो मैंने जज से पूछा कि भाई ये पेंटिंग बहुत अच्छी है, बहुत कलरफुल है। वो कहता सर जो मैं देख रहा हूँ ये देखने वाले नहीं देख रहे। मैंने कहा क्या? कहता इस बच्ची ने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई, आसमान बनाया, बारिश बनाई, लेकिन बारिश भी चल रही है, उधर सूरज भी निकला हुआ है, तो बारिश और सूरज दो इकट्ठे नहीं हो सकते। इसी तरह एक ने पेंटिंग बनाई घुड़सवार की, बहुत बढ़िया पेंटिंग, कि घोड़े पे चढ़ने वाला है वो घोड़ा भी अच्छा, चढ़ने वाला भी अच्छा, कलर अच्छे, कलर कॉम्बिनेशन अच्छी, एस्थेटिकली बहुत अच्छी, लेकिन वो फर्स्ट नहीं आई। क्यों नहीं आई? तो जज ने बताया कि जी इसने दायां पांव रकाब में रखा हुआ है, तो जब घोड़े पे चढ़ते हैं तो बायां पांव रकाब पे रखकर चढ़ते हैं। तो ये इतनी सी जो बारीक बातें हैं, ये थिएटर समीक्षक समझेगा। मैं इसको और आसान कर देता हूं। अब ये डॉक्टर साहब सिंह, आपको शायद ना पता हो, मेडिकल डॉक्टर। तो जब एक होता है स्पेशलिस्ट, एक होता है सुपर स्पेशलिस्ट। अब एक सर्जरी, एक सर्जन है और एक प्लास्टिक सर्जन है। तो सर्जन जब टांका लगाएगा तो नजर आएगा, वो तो होगी नाट्य पत्रकारिता, लेकिन जब प्लास्टिक सर्जन करेगा तो नजर नहीं आए। मैं इसको और आसान कर देता हूं कि दर्जी, कोई कमीज फट गया, जब दर्जी टांका लगाएगा तो नजर आएगा, लेकिन रफूगर लगाएगा तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा। तो रंगमंच समीक्षक भाई रफूगर है, वो प्लास्टिक सर्जन है, उसको उन बारीकियों का पता है। अब एक छोटी सी तार आपके बाजू में से जाकर आपके दिल का कैमरा खींचकर ले आती है, वो इतनी बारीकी जो टेक्निक में है, उस टेक्निक को समझना और फिर समझाना। अब दर्शक समझ लेता है, लेकिन समझाने का काम समीक्षक का है। और कई बार समीक्षक वो बातें बताते हैं जो कि डायरेक्टर को खुद भी पता नहीं होती। जैसे राइटर, जब नाटक आपने लिखा, मैंने खेला, कई बार लगता है यार ये बात तो मैंने सोच कर लिखी ही नहीं, वाकई आपने नहीं सोचा।
आपने नाटक लिखा 2020 में, लेकिन नाटक खेला जाएगा 2520 में। अब जब हम शेक्सपियर का नाटक खेलते हैं आज से 500 साल पहले लिखा हुआ, आज का जो डायरेक्टर खेलेगा उसमें से नए अर्थ निकालेगा। और तो और नाटककार ऐसे हैं जो क्लासिक्स को रीराइट करते हैं, जैसे कि सोफोक्लीज का इडिपस एट कॉलोनस, और उसका जो तीसरा पार्ट है एंटीगनी। तो एंटीगनी को यान हुई ने रीराइट किया। तो मैंने यान हुई का एंटीगनी देखा है। अब यान हुई का एंटीगनी किसी भी तरह सोफोक्लीज से कम नहीं है। तो जितना भी एक राइटर का काम है उससे निर्देशक आगे जाएगा, और जो निर्देशक का काम है उससे समीक्षक आगे जाएगा। समीक्षक की समीक्षा पढ़कर, क्योंकि देखिए प्रोडक्शन तो 3 घंटे बाद खत्म हो गई, लेकिन समीक्षा सदियों तक रहेगी। जब मैं ब्रेख्ट की किताबों की बात करता हूं, या मैं जॉन विलेट की बात करता हूं, या अंडरस्टैंडिंग ब्रेख्ट वॉल्टर बेंजामिन की बात करता हूं, या उत्पल दास जी की बात करता हूं, या और भाषाओं में बात करता हूं, इवन नोरा रिचर्ड की किताब है छोटी सी प्ले राइटिंग, तो जब मैं उनकी बात करता हूं तो नाट्य समीक्षक की रचना नाटककार की तरह ही रहेगी। अब आप याद कीजिए कि हमारे पास कालिदास के नाटक हैं, भास के नाटक हैं, शूद्रक के नाटक है, बुधायन का नाटक है, लेकिन भरतमुनि का नाट्य शास्त्र सब पे भारी है। हमारे पास सोफोक्लीज के नाटक हैं, स्टाइलस के नाटक हैं, यूरिपिडीज के नाटक हैं, लेकिन अरिस्टोटल का पोएटिक सब पे भारी है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि रंग समीक्षक या रंग सिद्धांत और नाटककार दोनों की बड़ी जिम्मेवारी है निर्देशक के आगे। एक नाटक के 5000 निर्देशक होंगे, लेकिन नाटककार एक ही होगा, और उन 5000 प्रोडक्शन का जो अलग अलग समीक्षकों ने उसका मूल्यांकन किया वो भी हमेशा रहेगा। प्रिंट वर्ड इज द लास्ट वर्ड। हो सकता है कि ऐसा समय आ जाए कि ऑडियो विजुअल रह जाए, लेकिन मुझे अभी भी पूरा यकीन नहीं है। मैं एक छोटी सी उदाहरण देता हूँ। हिंदुस्तान ने दिलीप कुमार नाम का एक्टर पैदा किया जो दुनिया के 10 बड़े एक्टर्स में से एक है। वो 97 के होंगे, जिंदा है अभी, लेकिन किसी को नहीं मालूम कि नई जनरेशन दिलीप कुमार कौन है। फिल्में हमारी, मैं सिनेमा पे भी रिसर्च करता हूँ, हमारी बहुत सी फिल्मों की हमारे पास स्क्रिप्ट नहीं है। तो जो ये हमारे पास ये टेक्निकल माध्यम है, ये बदलते रहेंगे। जरूरी नहीं कि प्रोडक्शन रह जाए, अगर रिकॉर्ड भी कर ले तो रह जाए। वायरस आता रहता है, लेकिन इस 135 ग्राम के पुर्जे में वायरस नहीं आता। तो यहाँ से समीक्षा निकलती है, यहाँ से नाटक निकलता है, यहाँ से निर्देशन निकलता है। इसलिए इस बात को समझना होगा, और खासकर हमारे निर्देशकों को समझना होगा कि वो खुद कहें कि यार आओ हमारी समीक्षा करो। हम जाते हैं ना हॉस्पिटल के, भाई ऑपरेशन करो, ये बीमारी होगी, ये बीमारी होगी, और जो इंजेक्शन लगाने से डरेगा, ऑपरेशन से डरेगा, वो तंदुरुस्त नहीं होगा। इसी तरह समीक्षक डॉक्टर है आपका, वो आपका सर्जन है। अगर वो सर्जन आपका काम करे, हो सकता है कि हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत हो सकता है कोई और टेक्निकल बात हो। इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ सभी रंगकर्मियों से खासकर, कि जब वो नाटक के लिए चीफ गेस्ट बुलाते हैं, डीसी साहब आ जाएं, वीसी साहब आ जाएं, पैसे देने वाले आ जाएं, स्पॉन्सर आ जाएं, दर्शक आ जाएं, वो ये क्यों नहीं देखते कि समीक्षक आया कि नहीं आया। अब अगर ऑपरेशन टेबल सेट हो गया लेकिन डॉक्टर नहीं है तो क्या करें। इसलिए समीक्षक को स्टेटस सोसाइटी ने देना है, डायरेक्टर ने देना है, थिएटर ने देना है, और खुद कहो। मेरे 2 दोस्त हैं, आत्मजीत और कृपाल कज़ा। वो हमारे, मैं मालूम नहीं आप दूसरी भाषाओं वाले कैसे समझेंगे, पंजाब में एक छज होता है जिसमें गेहूं रखकर उसको ऐसे छाटा जाता है। तो मैं कहता हूं कि मैं हर हफ्ते अपने आप कृपाल कज़ाक और आत्मजीत के पास जाता हूं कि भैया मेरे को अपने छज में डालो और मुझे फेंटो, देखो क्या निकलता है। जबकि मैं 65 साल का हो गया, बहुत खब्बी खान समझता भी हूँ, माना भी जाता हूँ, लेकिन मुझे भी जरूरत है इस बात की। इसलिए हम अगर समीक्षक को, और दूसरी बात थिएटर डिपार्टमेंट्स को मैं कहूंगा कि वो रंग समीक्षा का पेपर क्यों नहीं लगाते। उनके सबसे कम पेपर होते हैं लिटरेचर पे और क्रिटिसिज्म पे। एक पेपर होगा लिटरेरी टेक्स्ट का, कुछ नाटक पढ़ा दिए, लेकिन थिएटर क्रिटिसिज्म का पेपर होना चाहिए। मुझे मालूम नहीं, मैं अज्ञानी हूँ कि एनएसडी में पेपर होता है नहीं होता, लेकिन बिल्कुल जिस नहीं होता। डिपार्टमेंट में बाकी नहीं सभी डिपार्टमेंट्स हैं, वहां रंग समीक्षा का बकायदा एक पेपर हो, और वो सिखाई जाए कि रंग समीक्षा कैसे होगी। उसके लिए आपको रंग सिद्धांत का बेस बनाना पड़ेगा, उसको आप अपनी पैनी दृष्टि देखनी पड़ेगी, आपको टेक्निकली भी पता होना पड़ेगा। इसलिए जो एनएसडी के हमारे कुछ अध्यापक हैं, मैं जे.एन. कौशल जी का, देवेंद्र अंकुर जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, और महेश शर्मा जी, मुझे नहीं मालूम वो
एनएससी से बेशक नहीं निकले हुए, हिंदी साहित्य के प्रोफेसर हैं, लेकिन ये लोग जयदेव तनेजा जी, महेश आनंद जी, हाँ महेश आनंद, उन्होंने मेरी महेश आनंद, महेश आनंद, हाँ उन्होंने मेरी किताब की वेटिंग वो की थी। अरे भाई इतना तो उम्र हिंदी के तेरे प्रोफेसर थे हमारे। गड़बड़ होगी। हाँ, महेश हाँ, आनंद जी। तो हम्म, जो हमारे हिंदी में हाँ ये रंग समीक्षक हैं, हमें पंजाब में पंजाबी भाषा में वैसे ही रंग समीक्षक चाहिए, और उसके लिए हमें बाकायदा ट्रेनिंग चाहिए, और रंगमंच समीक्षक को ओन करना चाहिए। मान सम्मान बहुत गलत शब्द है, उसको ओन करना चाहिए। वो एग्जिस्ट करता है, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो थिएटर एग्जिस्ट करता है, अगर डायरेक्टर एग्जिस्ट करता है तो नाटक एग्जिस्ट करता है। मैं सिंपल बात कहता हूँ कि जिस भाषा का जैसा थिएटर होगा वैसा नाटक होगा। आज हमारा थिएटर यहाँ पे है तो हमारा नाटक भी यहीं पे है, लेकिन जिस भाषा की जैसी रंग समीक्षा होगी वैसा थिएटर होगा। अब हमने 2 मंजिलें तो पूरी कर ली, पहली मंजिल नाटककारी वाली, रंगकर्म वाली, लेकिन तीसरी मंजिल अभी अधूरी है, उस पे छत डालने वाली है, दीवारें बन चुकी हैं, तो उस पे जल्दी छत डालें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सतीश जी, हमारे बीच में उमा झुनझुनवाला जुड़ी हुई हैं, जो कि कलकत्ता से हैं। जी जी एक बहुत ही स्थापित नाम है कलकत्ता में रंगमंच का। जी जी अगर आप कलकत्ता से शुरू होते हैं और दिल्ली तक पहुंचते हैं तो जी उनका नाम आपको जानने मिलेगा। जी दूसरा जो है लोहा कुट नाटक, जो हमारा बलवंत गार्गी जी का, जी वो जी सन 90 से लगातार अब तक करती आ रही हैं। और जी वो कंटिन्यूसली उसके काफी शो वो किए हैं। कल उन्होंने जी बहुत अच्छी बात इन्होंने कही थी कि हमारे जो एनएसडी के स्टूडेंट्स जो पास आउट होके निकलते हैं, उनको हिंदुस्तान के हर क्षेत्र में भेजना चाहिए, ताकि वहां के नाटकों को वो देखें, लोक कला को देखें, और जी हर जी क्षेत्र में जाएं, हर क्षेत्र में जाएं। उसके बाद उनको चाहिए कि रिपोर्ट बनाएं, एक रंग समीक्षक वाली रिपोर्ट बनाएं। तो शायद एक तरीका हमारे पास ये भी हो सकता है जिससे हम रंग समीक्षक निकालें। तो उमा झुनझुनवाला जी हमारे बीच में है, हमारी लोहा कुट की, हमारी पंजाब बलवंत गार्गी की खास हीरोइन। मैं उनसे कहूंगा कि अगर वो डॉक्टर सतीश वर्मा से कुछ सवाल पूछना चाहती हैं या कल से अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहती हैं। उमा झुनझुनवाला जी, आपके पर माइक है, अपने माइक को ऑन कर दीजिए। और हेलो उमा जी, उमा जी मेरी बात को सुन रही थी अभी आप? शायद कहीं चली गई। आवाज आ रही है? हाँ अब आई, अब अब बोलिए। आगे जी 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 हाँ, जी सागर। हमारे बीच में अभी आप सुन रही थी डॉक्टर सतीश वर्मा जी को, जी जी हमारे जी मैं पंजाब सबको सुन के रही थी। बहुत बड़े मैंने रंग चिंतक हैं। साहेब जी को भी सुना। जी 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 आप सबको मेरा सादर प्रणाम। और आज सिर्फ सुनने की बारी, और मुझे अच्छा लग रहा है कि कल जो हमने चर्चा की थी, अम, वर्मा साहब ने भी वही बातें, लगभग वो बातें कही। तो मुझे तो बस ये लग रहा है कि हमारे तो सीखने के दौर है, हम तो सीख रहे हैं, और हम जो सोच रहे हैं वही सुन रहे हैं, तो सोचना सार्थक लग रहा है। और जहां तक रंग आलोचक की बात है, मैं आज भी वही बात कहना चाहूंगी कि एक रंग आलोचक, एक सार्थक, एक मजबूत रंग आलोचक हम अपने समाज में तभी पाएंगे जब हम मिलकर, क्योंकि रंग आलोचक का मतलब ही होता है कि वो रंगमंच से जुड़ रहा है, रंगमंच पर घटित होता है उसको प्रत्यक्ष देखेगा, और वो 1.5-2 घंटे में नाटक देखकर उसकी आलोचना अच्छी नहीं हो सकती, वो रिपोर्टिंग हो सकती है। कल भी मैंने ये बात कही। तो मुझे लगता है कि जो रंग आलोचक हैं, कुछ एक रंग आलोचक महेश आनंद साहब और जयदीप तनेजा साहब हैं, जो कुछ रंग मंडलियों के साथ जुड़े होते हैं, उनकी रिहर्सल प्रोसेस में होते हैं, लेकिन ये बहुत सीमित होता है। मुझे लगता है कि हर शहर में रंग आलोचक होने चाहिए, जो अपने शहर में होने वाले नाटकों के रंगमंची जो प्रक्रिया है, जो वो पूरा जो थिएटर प्रोसेस होता है, रिहर्सल का जो प्रोसेस होता है, जहाँ पर प्रकाश की संयोजना जब होती है, म्यूजिक होता है, सेट और लाइट और कॉस्ट्यूम मेकअप, अभिनेता, निर्देशक सबके साथ वो मिले, वो चाय पे अड्डा करे, बातचीत करे, साथ मिलजुल कर वो पूरे रिहर्सल के प्रोसेस में बना रहे। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक शहर में बहुत ज्यादा 10 नाट्य संस्थाएं बहुत सक्रिय रूप में काम कर पाती होंगी, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा। हमारे कलकत्ता में तो हिंदी के अभी हिंदी की गिनी चुनी नाट्य संस्थाएं, आप 1 या 2 कहें,
जो काम हिंदी में काम कर रही हैं, या फिर बंगला में, तो अगर आप जोड़ेंगी तो बंगाल में बहुत नाट्य संस्थाएं हैं, राष्ट्रीय स्तर की तो 20-30 है ही, और ऐसे तो यहाँ पर हमारे हर गली मोहल्ले में एक नाट्य संस्था है, और इनके यहाँ आलोचक भी हैं, समीक्षक भी हैं, उसी मात्रा में है जो अखबारों में नजर आते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यही चीज अगर हमारे यहाँ हो और रंग प्रक्रिया के साथ अगर जुड़े, और जैसा कि अभी वर्मा साहब ने कहा कि एक विषय समीक्षा का भी हो, तो यहाँ मैं आपको बताऊं कि हमारे कॉलेज में जितने हिंदी विभाग जहाँ मुझे हमेशा बुलाया जाता है, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपने विद्यार्थियों के लिए 10 नंबर रख दीजिए, क्योंकि विद्यार्थियों पर जब किसी चीज को बांध दिया जाता है ना, तो वो काम करते हैं और नंबर का उन्हें बड़ा डर होता है। तो अगर आप 10 नंबर बांध दें और कहें कि आपको नाटक देख कर आना है, उस नाटक पर लिखना है, लेकिन वो विद्यार्थी तभी नाटक पे लिख पाएगा जब उसे रंगमंच के से भाव पक्ष और कला पक्ष के बारे में नहीं पता हो। क्योंकि आप सब जानते हैं विद्यालयों में और नाट्य ये मतलब कि कॉलेजों में और यूनिवर्सिटी में नाटक के भाव पक्ष और कला पक्ष, चरित्र चित्रण, देश काल, बस बहुत ज्यादा होता है। तो आखिरी पॉइंट होता है अभिनेता, इससे ज्यादा तो कुछ बताया नहीं जाता। तो रंगमंच की बारीकियों को पढ़ाने के लिए रंगमंच से जुड़े लोगों को बुलाकर उन्हीं की क्लासेस हो, और उसी आधार पे 10 नंबर का अगर एक पेपर बांध दिया जाए कि आपको नाटक देखना जरूरी है और उस पर एक समीक्षा करनी जरूरी है, तो ये जो हम रिपोर्टर जिसे जिन समीक्षकों को, नाट्य समीक्षकों को हम समीक्षक कहते हैं, दरअसल वो समीक्षक नहीं होते हैं, वो बेचारे होते हैं, वो बेचारगी से लदे होते हैं। वो कहानी वो नाट्य की पटकथा लिख देंगे कि भाई ये कहानी थी और इस फलाने ने अच्छा अभिनय किया, फलाने का निर्देशन अच्छा था। इससे ज्यादा वो, ये उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो पूरी रंगमंच की चीजों से और बातों से जुड़े हुए नहीं है, वो समझ में नहीं है। अच्छा, और हम उनसे कैसे अपेक्षा करें कि वो नाट्य शास्त्र के सिद्धांतों पर या रस के सिद्धांतों पर वो कुछ लिख पाए? ये संभव नहीं है। ये संभव उनके लिए ही हो सकता है जहाँ नाट्य विद्यालय है, नाट्य विद्यालयों में जो सिखाया जाता है, और नाट्य विद्यालयों में जब अभिनय सिखाया जाता है, रंगमंच सिखाया जाता है, तो वो पूरा टोटल थिएटर पढ़ाया जाता है, टोटल थिएटर समझाया जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर ये हम करें और आज जो सुझाव मैंने सुने हैं, उन सुझावों पर कार्य किया जाए और ये एक बल दिया जाए कि इसकी शुरुआत छोटे रूप में ही हो, लेकिन जरूर हो। और जैसे मैं अभी, मेरी छात्रा यहाँ बैठी भी जो आप देख रहे होंगे, नेहा लगातार लिख रही है। मैं अपने जो कलाकार है उनको मैं नाटक देखने भेजती हूँ, उनसे कहती हूँ कि आपको जो समझ में आता आप लिख कर लाओ, मुझसे चर्चा करो, मुझसे पूछो किस नाटक में आप जो लिख कर लाए तो मैं बताऊंगी आपने क्या देखा, क्या समझा। तो हर कोई अपने अपने कलाकारों से भी कहे कि वो नाटक देखें, नाटक की चर्चा करें, और रिहर्सल के दौरान हम सिर्फ स्क्रिप्ट की चर्चा नहीं करें, बल्कि दूसरों के नाटक देखकर गुण और दोष दोनों की चर्चा करें। तो मुझे लगता है कि चूंकि काम इतना हो रहा है, बहुत काम हो रहा है, हर शहर में हो रहा है, और अगर उन सारे कामों को इकट्ठा किया जाए, उन सारे कामों को देखा जाए, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई नया सिद्धांत नजर आएगा। सिर्फ एक नाटक की चर्चा करने पे सिद्धांत नहीं होंगे। आप अपने शहर के जब 10 नाटकों की चर्चा एक साथ करेंगे, तब आप बता पाने में सक्षम होंगे कि फलाने नाटक में क्या नया प्रयोग हुआ, या कि इस नए सिद्धांत का आपने देखा कि कोई जन्म भी हुआ है। सिद्धांत तुरंत कोई परिभाषा, शब्दों की परिभाषा नहीं है। ये चूंकि सारा कुछ रंग का खेल है और प्रत्यक्ष खेल है, तो कहीं पर कोई भी सिद्धांत अचानक में नजर आ सकता है, कोई एक्सपेरिमेंट, कोई प्रयोग के रूप में वो नजर आ सकता है। उसकी चर्चा खुलकर हो और उस चर्चा को व्यापक बनाए। और फिर मुझे एक बात और कहनी है कि साल में हर महीने नहीं तो 4 बार, 4 बार नहीं तो कम से कम 2 बार अपने अपने शहर में रंग मंच को लेकर चर्चा, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस कुछ ऐसा जरूर हो, जिसमें हर रंगकर्मी को जो नाटक से जुड़ा है उसकी राय ली जाए, उससे बात की जाए, उसको बोलने का मौका दिया जाए।
उसकी बातें सुनी जाए, तो मुझे लगता है कि कुछ सकारात्मक और एक बहुत अच्छी चीजें हमारे रंगमंच में मजबूत चीजें सामने आएंगी और होंगी। शुक्रिया उमा जी, शुक्रिया बहुत बहुत आपका, बहुत अच्छी जी। बात आपने कही। मेरा ख्याल है अब हम सेमिनार को ओपन कर रहे हैं, हमारे पास समय है 10-1 मिनट। अगर किसी के पास कोई सवाल हो, ਜਿਹੜਾ कोई सवाल पूछना चाहे वो कोई सवाल पूछ सकता है। सतीश वर्मा जी ਸਾਡੇ ਨਾਲ है, साहब सिंह जी भी है, देवेंद्र जी है। ਜੇ कोई सवाल किसी ਦਾ है तो प्लीज अपने सवाल ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। बीना जी, कोई सवाल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਵਰਮਾ ਸਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਬਸ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਗਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਟੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਤਾਰ ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। आप मेरी पीएचडी स्टूडेंट है, मैं आपको अक्सर गाइड करता रहता हूँ। आपने इस मंच का फायदा उठा लिया, मैं गाइड कर दूं। उसके बारे में वीना जी, मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ बाकी भी समझ पाए। जी सर। जो मैंने आपने उस वक्तव्य में भी कही थी कि जब आप नाटक हम पढ़ाते हैं ना कॉलेजेस में, स्कूलों में, तो हम उसको फिक्शन की तरह पढ़ा देते हैं। पहले ऐसे ही होता रहा, अब भी तकरीबन कॉलेजेस में ऐसा ही होता है। अब नाटक में भी प्लॉट है, उपन्यास में भी प्लॉट है, लेकिन उसका जमीन आसमान का फर्क है। नाटक में भी पात्र है, उपन्यास में भी पात्र है। उपन्यास में नैरेटिव है, वो लेखक की कलम में है कि उस पात्र को आसमान पे चढ़ा दे, जमीन पे उतरा दे, लेकिन नाटक में तो पात्र की एक सीमा है, उसने तो जीवंत रूप धारना है। इसके लिए मेरी किताब है पंजाबी नाटक प्रगति ते पसार, उसमें एक चैप्टर है नाटक दा अध्यापन, टीचिंग ऑफ ड्रामा। उसमें मैंने ये काफी डिटेल दी हुई है। अब आपके सवाल के जरिए मैं, जो उमा जी ने बात कही, उमा जी आप बहुत अच्छी हिंदी बोलती हैं, बहुत आपका शुक्रिया, आपने बहुत मुद्दे की बात की। और ये जो बात वर्कशॉप वाली की, मुझे लगता है रवि जी, आप अपने कॉलेजिएट ड्रामा सोसाइटी के प्रावधान में भी कर सकते हैं, साहब जी आप भी कर सकते हैं, कि हम एक रंग समीक्षा की भी वर्कशॉप लगाएं, जिसमें थिएटर क्रिटिसिज्म पे वर्कशॉप हो। उसमें थिएटर वाले डायरेक्टर भी आए, सब भी आए। अब रंग समीक्षक की बहुत बड़ी भूमिका होती है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। 98 में मैंने भी उमा जी लोहापुट किया था पटियाला में। वो मेरे दोस्त हैं, उन्होंने डायरेक्ट किया था, परवीन सलारिया। वो इंडियन थिएटर डिपार्टमेंट के प्रोडक्ट थे, अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो मैंने उसमें काकू का रोल किया था। अब जब आप एक्टर काम करता है, जैसे मैंने उत्पल दत्त जी एग्जाम्पल दी, तो एक्टर की आइडियोलॉजी भी साथ होती है। तो जब मैं रोल कर रहा हूँ काकू का, तो मैं नाटककार सतीश भी हूँ, अध्यापक सतीश भी हूँ, समीक्षक भी हूँ। अब लोहाकुट इसलिए हमारा पंजाबी का सबसे बड़ा नाटक है कि वो ओपन एंडेड है। जब वो खत्म होता है तो उसकी एक से बढ़कर एक इंटरप्रिटेशन है। तो लास्ट उसका एक सीन है, उमा जी ने तो नाटक किया हुआ है, कि उसकी बीवी भाग गई, लड़की भाग गई काकू की, और उसके जो दोस्त हैं वो दरवाजा पीट रहे हैं। वो कहता है जाओ तुम जाओ, मुझे दरवाजा नहीं खोलना, मुझे काम करना है। तो अब मैंने एज एन एक्टर उस डायरेक्टर से पूछा कि भैया वो तो नजर नहीं आ रहे दर्शकों को, मैं नजर आ रहा हूं, तो मैंने क्या काम करना है यहाँ पे? कहते आपको वही लोहा कूटना है। मैंने कहा ये बताओ कि जिस आदमी की बीवी भाग जाए, बेटी भाग जाए, क्या वो काम कर पाएगा? वो काम पे मन लगाएगा? कहते फिर? मैंने कहा मेरी सुजेशन है, नॉट एन एक्टर, मैं तो एक्टर के तौर पे तो सोचता हूं कि वो अपने आयरन पे हथौड़ा चलाएगा उन लोगों को बताने के लिए कि भाई मैं काम कर रहा हूं, लेकिन वो काम नहीं कर रहा। उसके आयरन और हथौड़े के बीच में कुछ नहीं होगा, कोई हल फाला नहीं होगा। वो सिर्फ आयरन पे हथौड़ा टक 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 करेगा अपनी फ्रस्ट्रेशन को उसके साथ। तो ये एक एब्सर्ड एंडिंग भी हो सकती है, लेकिन उस कैरेक्टर की मानसिकता जो है वो क्या होगी, ये मेरे अंदरले रंग समीक्षक ने उस समय ढूंढी, और उसको मैंने बतौर अदाकार उसको किया। इसलिए ये बात तो जरूरी है कि जो भी रंग समीक्षक है, अगर वो एक्टर डायरेक्टर सबसे मिले, तो जैसे मैंने बोला कि निर्देशक स्क्रिप्ट को इंटरप्रेट करेगा, तो जो समीक्षक है वो प्रोडक्शन को भी इंटरप्रेट करेगा, और साथ में उसे नाटक को भी इंटरप्रेट करना होगा। सो रंग समीक्षक, उसके लिए नाट्य पाठ और प्रोडक्शन दोनों ही इंपॉर्टेंट। थैंक यू सर। हाँ जी देवेंद्र जी, उसका प्रोग्राम को समाप्त कर रहे हैं हम। देवेंद्र जी कुमार जी सर,
पूरी वार्ता को समाप्त करते हैं हम लोग। हाँ जी, आपके ऊपर ये बात की है रंगमंच और हमारे जो दोनों विद्वान है जी एक एक ही बिंदु पे घंटा घंटा बोल सकते हैं। आप उनकी सो थोड़ा सा वक्त की पाबंदी है, जो इसलिए प्रोफेसर नहीं वो भी बोल सकते हैं, है? जो प्रोफेसर नहीं है वो भी बोल सकते हैं जिनका धंधा नहीं। बहुत ही जो महत्वपूर्ण बिंदु है डॉक्टर वर्मा जी ने उनको उठाया और उनको एक्सप्लेन किया कि रंग मंच में रंग समीक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए और वो अनिवार्य है। उनकी भूमिका के बिना जो रंगमंच है उसकी जो प्रोडक्शन है वो दर्शकों तक सीमित हो जाती है, वो इतिहास का हिस्सा नहीं बनती है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती है और रंगमंच के विकास के लिए भी वो टूल नहीं बन पाती है। इसलिए जो रंग समीक्षक होना चाहिए वो भी ट्रेंड होना चाहिए, उनको रंगमंच के सभी जुज का पता होना चाहिए। वो इस रूप से करें कि वो एक एज एन एक्सपर्ट एक कंप्लीट अपनी ओपिनियन है वो रंगमंच के लिए दे सके। सो ये महत्वपूर्ण है। अभी ये कंक्लूजन पे हम नहीं निकले हैं, अगर कहीं और वक्त मिला तो इसको फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है। बहुत सारे महत्वपूर्ण है जो उमा जी ने भी उठाए हैं और सभी को क्लब करके इसका आगे का रास्ता जो है संभावना हमें दिखाई दे रही है, उन पे बात की जा सकती है। सो लास्ट निष्कर्ष के लिए और वो कंक्लूजन रिमार्क्स के लिए मैं रवि तनेजा जी को आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर देवेंद्र जी। आप बहुत बड़े नाटककार भी हैं, रंगकर्मी भी हैं और रंग समीक्षक, रंग आलोचना आप करते रहे हैं, चाहे वो नाटकों की रंग आलोचना हो या पंजाबी रंगमंच की आलोचना हो, आपने बहुत अच्छा समर्थ किया। डॉक्टर सतीश वर्मा जी को लाने का सिर्फ मेरा मकसद ये हो रहा है, बार बार लाने का। वो कई बार मेरा फोन काट भी देते हैं आजकल, लेकिन मैं हूँ कि जिद करके उनके पीछे पड़ा हुआ हूँ। वो नेटवर्क प्रॉब्लम ही काटता नहीं यार मैं। अच्छा, नहीं सर, मेरा मकसद सिर्फ आपके साथ आपको बार बार फोन करने का ये होता है। जैसे आज मैं सत्येंद्र तनेजा जी के पास बैठा हुआ था, लगभग 2 घंटे मैं उनके साथ बैठा हूँ। आपके पास बात करने का, इस समय जो कोविड का ये हमारा पीरियड चल रहा है, असल में मंथन चल रहा है, हर आदमी मंथन कर रहा है। उस मंथन के अंदर कहीं तो अमृत गिरेगा, उसकी मैं तलाश में हूँ। इसीलिए मैं सतीश वर्मा जी के पास आता हूँ कि वो मंथन का पूरा, जो अमृत का पूरा कटोरा लिए घूम रहे हैं, उनके पास है, तो कहीं वो टपके। मैं तो उनकी आलाश में होता हूँ कि कहीं टपके और मुझे मिले, ताकि मेरी नॉलेज में इजाफा हो। आज जो बात आपने कही है डॉक्टर साहब, कि वर्कशॉप लेवल पे, लेबोरेटरी लेवल पे हमें रंग समीक्षक से बात करनी पड़ेगी, तैयार करने पड़ेंगे। ये बात आज हमारी संगम पांडे जी से हो रही थी। संगम पांडे जी कह रहे हैं कि इसको हम विस्तृत रूप देते हैं। रंग आलोचना पे एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो सिर्फ पंजाब का नहीं है। जैसे पंजाब के अंदर मैंने एक किताब पढ़ी थी, शायद डॉक्टर हरचरण सिंह जी की किताब थी, इन्होंने अपने पहले पेज में लिखा था कि समूचे पंजाबी नाट साहित्य का ये दुर्भाग्य रहा है, इसे कोई भी बलवान चिंतक इसकी अगुवाई नहीं कर सका। हम आज भी, जैसे साहब सिंह ने बोला कि जो गुरशरण बाजी का है उसी को लेके चल रहे हैं, या फिर ईश्वर चंद नंदा के बाद जो चल रहा है यथार्थवादी थिएटर हमारा चल रहा है, उसी को हम पकड़ के बैठे हुए हैं। और हमने कोई जैसे मैं बंगाल के अंदर देखा, जैसे मैंने मराठी में देखा, वो लोक तत्व जो है उनके वो साथ अटैच कर देते हैं अपने इसके अंदर, वो साथ लेके चलते हैं। यथार्थवादी नाटकों के साथ साथ लोक तत्व साथ लेके, हालांकि पंजाब में इस तरह का एक्सपीरियंस कई नाटककारों ने किया है, लेकिन वो बात मुझे अच्छी लगी डॉक्टर साहब सिंह वर्मा जी की, सॉरी डॉक्टर वर्मा जी की, कि लेबोरेटरी लेवल पे इस पे काम होना चाहिए। संगम पांडे ने भी मुझे ये बात कही थी कि इस पे हम काम करते हैं, हम हर स्टेट में जाके वहां के चंगे अच्छे रंग समीक्षक को बुलाकर उनसे चर्चा करते हैं, और एक जिस निकलेगा उसके बाद तो उसको जो भी किताब का रूप देना है, जो भी देना है, तो शायद संगम पांडे जी और मैं मिलकर इस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जितने भी रंग चिंतक हमारे हुए हैं, रंग समीक्षक हुए हैं, उन सबको बुलाकर उन सब की वार्ताएं सुनी जाए, उनको रिकॉर्ड किया जाए, उसको किताब की शक्ल दी जाए। और फिर जो ये वर्कशॉप वाली बात है कि रंग चिंतक, ये स्कूल्स लेवल पे आपका तो काफी दखलंदाजी है अपने पंजाबी डिपार्टमेंट, पंजाबी थिएटर एंड टेलीविजन डिपार्टमेंट के अंदर, आप उनको कह सकते हैं कि एक सब्जेक्ट इसका रखो। और जो कल उमा झुंझुनवाला ने कही कि जो बच्चे नाटक सीख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, इनको भेजा जाए कि ये जाकर नाटक देखें और नाटक की समीक्षाएं लिखें, और उसके बाद उनको नंबर दिए जाए, उनको जो सर्टिफिकेट दिया जाए उसके बाद दिया जाए। एक इनका एक तरीका ये भी होना चाहिए, रंग नाटक देखना, वो भी एक तरीका हमें आना चाहिए। और चलिए, एक अच्छी सार्थक वार्ता हमारी आज हुई है।
जिसके लिए मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार जी का, डॉक्टर सतीश वर्मा जी का और साहब जी का, डॉक्टर साहब सिंह जी का मैं बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और तमाम ऑडियंस का भी जो हमारे साथ जुड़े रहे इस बात के लिए मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ। कॉलेजिएट ड्रामा सोसाइटी की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस मंच में आए। एक नई वार्ता को लेकर हम आपके बीच में फिर आएंगे। रंग आलोचना, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट निकल रहा है हमारे बीच में। अभी सिद्धांत पे हम लोगों ने बात बहुत कम की है, अभी समीक्षा पे बात की है, सिद्धांतों पे बात भी हमने करना है। क्या सिद्धांत हैं इसके, क्या सिद्धांत गढ़े जा रहे हैं, वो पंजाब में क्या गढ़े जा रहे हैं, मराठी में क्या गढ़े जा रहे हैं, हम इसको भी सम अप करने की कोशिश करेंगे। एक अच्छा कोविड का टाइम मिला है जिसमें हम लोग बात कर सकते हैं, तो इस लेवल पे बात होगी। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। शब्बक है, नमस्कार। रवि जी प्रोटोकॉल तोड़कर 1 मिनट ले लूं मैं? बोलिए सर, बोलिए ना। हाँ बस 1 मिनट। आपने जो डॉक्टर चरण सिंह की एग्जांपल दी ना कि उन्होंने पहले में लिखा कि रंग समीक्षक नहीं मिला, वो उनकी किताब 1971 में छपी थी, नाटक कला ते होर लेख। उस समय हम चारों पांचों लोग स्कूल में पढ़ते थे, अब हो गए। दूसरा जो आपने मंथन की बात कही वो मुझे बहुत अच्छी लगी। ये समुद्र मंथन भी हुआ था तो देवताओं को अमृत मिला था और दूसरों को विष मिला था। सो आज भी हम सब ने नीले रंग पहने हुए हैं, तो हम सभी समीक्षक हैं, इसलिए विष हमारा है और अमृत निर्देशकों का है। थैंक यू वेरी मच। बहुत खूब सतीश साहब, बहुत खूब, बहुत खूब। थैंक यू सर। जी जी, शुक्रिया आप सबको आपका मेरा भी बहुत प्रणाम। जी सबको शुक्रिया उमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा आप सब। हम कोशिश कर रहे हैं एक नए जो है भाषा के रंग आलोचकों को लेकर आए, और चाहे मराठी के हों, हमारी कोशिश रहेगी कि मराठी रंग आलोचकों को हम सामने लाएं। रंग आलोचना बहुत बड़ा सब्जेक्ट बनता जा एक रहा है, रवि जी इस पे बहुत मणिपुर चर्चा के भी की जा साथ सकती है। लाए हम, वहां पे भी अच्छा थिएटर हो रहा है। और एक कोई साउथ के भी ने हम, हाँ, मलयालम तमिल वाले हमारे दोस्त बहुत हैं, हम उनको सबको एक मंच पे लाने की कोशिश करेंगे, चाहे हम लोग महीने में एक बार लेकर आए, लेकिन इस तरह के रंग आलोचना पे हम लोग पूरा का संगम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इसमें, और डॉक्टर प्रताप सहगल जी वो सपोर्ट कर ही रहे हैं हमारे साथ। और जैसा सत्येंद्र तनेजा ने मुझे आज काफी डिटेल में बात की, और उनकी कई किताबें हैं, अभी भी लेटेस्ट उनकी किताब एक आई है जिनको मैं लेकर आया था आज पढ़ने के लिए। आपने पूरे देश के रंगमंच का संगम कर दिया। संगम जी फिर भी आपके साथ है। वो आपके सानिध्य में फाइनली तो मैं आपके पास ही आऊंगा पैर पकड़ने के लिए कि अब दीजिए मुझे कुछ अमृत दे दीजिए मुझे, मैंने सारा विष आपको दे रहा हूँ, उसमें से अमृत निकाल के मुझे दे दीजिए, तो मैं आपके पास ही आऊंगा। देखिए नाम किसी का है, वो विष वाले का ही रहेगा, नीले वालों का, इसलिए आप घबराइए मत, रहेंगे हम ही। तो आपसे मैं अमृत ले लूंगा सर, चलेंगे। आपके बिना मैं आगे नहीं बढ़। तो देखते हैं सर, ये बहुत अच्छा रहा आज का विषय बहुत अच्छा रहा, और आज की टॉक बहुत अच्छी रही, चर्चा बहुत शुक्रिया। अच्छी रही और कुछ सार्थक जरूर निकल कर आएगा, इसी आशा के साथ आप सबको हमारी तरफ से भी शुक्रिया। अब बिछड़ने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन ये जूम बंद कीजिए, अगली बार फिर मिलना। डॉक्टर साहब उषा जी के जो हैं अजहर आलम जी हस्बैंड, उनके बहुत अच्छी मैगजीन निकालते हैं, बहुत अच्छी वार्ता उनकी है, वो बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं वो, हिंदी के भी और उर्दू के भी, खासकर उर्दू की उनकी मैगजीन निकलती है। मैम मैगजीन का नाम क्या है जो थिएटर पे निकल रही है? रंग रस। ये आपको बताऊं कि उर्दू की अकेली पत्री मैगजीन है रहे, पूरे विश्व में उर्दू में थिएटर के ऊपर कोई मैगजीन नहीं है जो सिवाय लगी सिर्फ थिएटर की बात करती है। इसमें हम नाटक भी छापते हैं, अगर मान लीजिए कोई दूसरी भाषा में भेजता है तो उससे हम उर्दू में ट्रांसलेट भी करते हैं, और हर जगह की हर आप डॉक्टर सतीश कुमार वर्मा, आप पंजाब में सिर्फ एक ही आदमी को पकड़ लीजिए, डॉक्टर सतीश कुमार जी को, बस जी जरूर, पूरे पंजाब को अब सिर्फ एक ही आदमी को नहीं, मैं तो आप सबको पकड़ूंगी। वो हमारे यहाँ कहते हैं कि हाथी का पाँव में सबका पाँव, तो हमारे लिए ना जी बोलिए उमा जी क्या बोल रहे हैं? नहीं, बस वही कह रही हूँ कि ये रंगरस पत्रिका चूंकि उर्दू भाषा में है, तो अगर वहाँ आपके पंजाब में उर्दू जानने वाले लोग हों तो मैं उन्हें पत्रिका जरूर भिजवाऊंगी, और जाहिर सी बात है हम उनसे फिर सब्सक्रिप्शन तो ले ही लेंगे। उमा जी उर्दू पंजाब की भाषा है, उर्दू पंजाब की भाषा रही है,
उर्दू वो पंजाब, है ही पंजाब की, हमारे पैदा ही ये पंजाब तो में हुई है। पंजाब की भाषा तब उर्दू। तो क्या बात है, उर्दू हाँ। पंजाब क्या में ही बात है। मैडम पैदा हुई तो थी, ये हमारे आप लोग हमारे पंजाब में स्टेट ही में पैदा पैदा अच्छी हुई। लगी। वो संस्कृत से शाहजहां लेकर के उर्दू तब तक, तो मुझे उम्मीद है संस्कृत से कि ये लेके उर्दू मैगजीन तक आप लोगों सब को बहुत पंजाब में ही अच्छी पैदा लगेगी। हुआ है।